Okay, ji, Bismillahirrahmanirrahim. आज we are continuing with the yesterday's lecture. Last 2 days we have spent in deliberating upon various processes and their interactions, and today we are going to be discussing each of the process groups. And previously we did not talk much about what is inside a process group. We just saw the interaction of various process groups, and I hope if you have understood that, that is the main crux of it. So if you understand that when I want to initiate a project in the initiation process group, what are the various inputs? So just to remind you, if you remember correctly, we have got sponsor getting into the project. He brings along three things: project statement of work, business case, and the agreement. In addition to that, from the organization side, we get two inputs, and they were organizational process assets and enterprise environmental factors. Now, we are entering into the initiation process group, and we have to do something here. There are two processes inside of the initiating process group. As apparent from the screen right now, one is the develop project charter, which actually belongs to the knowledge area of project integration management. You remember the knowledge areas, the relationship. So develop project charter is an integration process, although it is residing in the initiation in process group, but it is an integration process. Whereas the other process is identify stakeholders, and identify stakeholder belongs to the knowledge area of project stakeholder management. These are the only two processes here. And naturally, I have already told you that integration knowledge area is the parent of them all. So out of the 10 knowledge areas, integration is one knowledge area which will lead in all of the process groups, which will head the all the work which is done in that process group. So here in these two processes, develop project charter is the leader. That is the main job. So this belongs to integration. Therefore, you can see a dotted circle around it, which represents that this is in control. So when project sponsor came in, armed with those documents, he had a mission to create a project charter, and this is the process develop project charter through which he will be developing that project charter. Now, as I said, till the time he does not give the charter to the project manager, whole of the responsibility of project lies on his shoulders. So he wants to get rid of that responsibility, and he wants to load that responsibility onto the project manager. Therefore, he will carefully study these documents available to him. He will also look at the organizational process assets and what is the organizational advice on the format of a charter. Then he may also look at the historical data and see what type of project charters have been written for the earlier projects. He may also consider the internal and external factors as enterprise environmental factors, and he will devise a project charter. He will write an order for the project manager. So as far as the sponsor is concerned, his job is to create or develop that charter and give it to the project manager. Now, project manager who is receiving that is supposed to at least understand the charter at a very high level. He may not go into a lot many details, but at least he must understand and ask questions to clarify what is to be done. He cannot be completely ignorant of the fact that what the project does. He must
at least understand what is the overall scope of the project and what are the limitations, what are the constraints broadly in a very high level sense. If this much is understood and he is satisfied, then the project sponsor's job is, main responsibility of project manager is done. Now project sponsor is done. Project sponsor can now sit back and relax, and he will now only be contacted by the project manager when and where required. And naturally, project sponsor will like to keep an eye on the project, and he will definitely define various points where he can interject and he can look what is happening in the project. But overall work of the project is now the responsibility of the project manager. Now, after having received the charter, uh, before he can plunge into the detailed planning, before he can go into the details of the scope and all other things, he must first look around, right in this initiation process group, and see who are the various stakeholders who are affected by this project or who can affect this project in any way. So a thorough identification of all the possible stakeholders is to be done here. Here, the role of this process 13.1 identify stakeholders comes into play, and project manager uh, looks around and see and records a list of all the possible stakeholders for the project. And as I said before, these stakeholders do not only have to be high level and broad stakeholders. This is the effort we want project manager to put in to identify anybody and everybody who has anything to do with the project. He is not supposed to be shortlisting them already. He is first to create a detailed list of all the stakeholders. Right, if we are identifying stakeholders for the construction of a school, then probably it is not only the funding source, it is not only the education department or the government or this and that. They are definitely the stakeholders, but they are not the only stakeholders. The teachers who will be hired in the school will be the stakeholders. The children who will be studying there will be the stakeholders. The people who will be affected by the environment around the school will be the stakeholders. You see, normally we have got schools in residential areas, and when the school is starting or it is finishing, then there is no control on the traffic. You can't really pass through that area. So the people will have problems. They will be affected by the presence of school in their residential community. Although there are benefits of that school as well, but naturally these people are the stakeholders who are passing through the road. And then the people, like a hawker who starts selling something outside the school is also a stakeholder. He will be benefited from that, and therefore he comes and he brings in his stall there and he starts earning some money out of it. So we normally ignore these minor stakeholders, and we think that they are not important, but you are nobody to decide right now that who is important and who is not. You are to create a comprehensive list of all the stakeholders which you possibly can conceive. I'm not saying that if you can't identify a specific stakeholder you have failed. No, but I say possibly you can conceive. So yes, if you can possibly conceive proactively all the possible stakeholders, later on this list can be enhanced. Maybe when you are maybe in execution or somewhere else in the project, you recognize that there is yet another stakeholder which was not identified earlier. So that stakeholder can be added to the list anytime. It is not only the matter of identifying the stakeholders here. We also need to analyze these stakeholders. And when we say we are analyzing these stakeholders, that essentially means that we are now trying to group them into the order of priority.
or somehow we are categorizing them into several groups. I am not saying that you will not pay attention to a specific group and more attention to another group, but what I am saying is you are grouping them as to their required needs and expectations, and also how much power they exercise, how much effect do they have. So according to that, once you have grouped them in several categories, later you will be able to strategize how to behave with each group of stakeholders. There would be some stakeholders who are really very important to you, so you may strategize that this is going to be my attitude with these stakeholders. There are certain stakeholders you may only like to remain in touch. You don't take orders from them. So this is what I call establishing a strategy for the different groups of the stakeholder. So your analysis is complete and you have created a stakeholder management strategy. So we do three things. We identify the stakeholder here, we analyze the stakeholder here, we categorize the stakeholder here, and ultimately we have a strategy to manage these stakeholders. Once this is done, all is done. We have no more to do in this process group. The only thing which you remember is one arrow was coming from planning to the initiation. Anybody remembers what was that arrow? There was an input coming from planning to initiation. So procurement documents. Exactly. And do you understand why was it coming there from there? What was the purpose of that? So these may be included in the revised version of a project charter. No, not at all. It has nothing to do with the charter. It has nothing to do with the charter. It is actually everything to do with identify stakeholders. You see, in during planning, you realized that there is a specific job which you cannot do yourself and it has to be outsourced. To whom should it be outsourced? Who are the competent people who can do it? These will ultimately become my stakeholders, and so far I might not have recognized these stakeholders. So for the identification of those stakeholders, depending upon the procurement documents, I am sending the procurement documents to initiation. That was the reason why procurement documents are going up from planning to initiation. And also remember that identify stakeholder though is shown in initiating process group, but this does not finish here. Identify stakeholder is going to be a continuous process and it will continue working. It will continue identifying, analyzing and strategizing about these stakeholders till the end of the project. It might be, when the project is being closed, your stakeholders will change. You see, stakeholders do change and their influence also changes. For example, there is a stakeholder in your school construction project, and that is your funding is coming maybe from a bank. So a bank has given you a loan and you have to reimburse this loan within next 6 months. And the project of construction of this school is say 2 years. So for the first 6 months, this bank is a key stakeholder because he exercises a lot of power over you because they control your funds, they are giving you this money and they expect this money to be getting back to them. So both ways they are your stakeholders. But after 6 months, once you have paid them off, this key stakeholder, which was very important in the beginning for the first 6 months, no more remains your stakeholder at all. You do not have to have any contact with them for the rest 1 year or 1.5 years of the project. Therefore, he ceases
to remain a stakeholder. Similarly, there might be several other stakeholders which were not the stakeholders in the beginning. They had nothing to do with the beginning of the project, but only when the school came up or the construction has finished or something like that, at a later stage, they become your stakeholders. And you could not even have identified them earlier because you had no clue that they can also be your stakeholder. So identification of stakeholder is going to be a continuous process. So what are the outputs here? From the first process, we get the charter and it is sent to the planning. From the other process, the identify stakeholder, we get the stakeholder register and the stakeholder management strategy. We establish the strategy and we create a list of all the stakeholders and we send it to planning. So as far as initiation is concerned, all job is done. We can move on to planning. Planning is a very deliberate process, as you have seen already, that all the 10 knowledge areas are deliberated in detail here. And as you can see from this diagram, the whole planning is homing on and depending upon one thing, and that is integration. So out of these 10 knowledge areas, integration is behaving like a integration point or a parent right in the middle, and the process develop project management plan is the crux of it. All other things, all other knowledge areas, their planning processes are surrounding it and contributing to it. Ultimately, by effort of all these subordinate knowledge areas and their processes, we intend developing a comprehensive project management plan. So that is our mission. That is why develop project management plan is the main process, is the heart of everything. Now the important point here is that develop project management plan is the very first process which starts developing at this stage during planning. The first thing we do is we start developing a project management plan. But there are total of 25 processes, 24 processes. There are total of 24 processes here in planning, out of which one is the develop project management plan. Remaining 23 processes keep contributing to this project management plan, keep building it, and when all is done, the project management plan is completed. So project management plan is the last thing which gets completed from planning. It is the first thing which got started when we started planning, and it is the last thing which gets completed. So and it keeps getting populated, it keeps getting filled in, and ultimately the project management plan is completed. Now we will discuss what is included in it and all that, and we have already talked a bit about that as well. Now what is happening is that when I said it is the first job we start doing, so it is just like I have been set on the job of project planning. I sit down calmly, I bring along a stack of plain papers, I buy a folder for my project, I call this folder my project management plan, and I start writing what it is. So I write a title page, this is the project management plan for the construction of the school, and I am the project manager, and I am creating it from this date, today is the first day of my planning, and so on and so forth. Then I plan how this plan will be developed. It will have these many parts. I will plan the scope and time and cost and all that. So these will be my maybe sub plans or chapters. And I will also provide broad instructions for all other areas on how to plan their work. Broad instructions. I will assign the responsibility to scope that you should
provide me a scope statement and this and that and whatever. So broad instructions are created here, and then I hand over this job to the relevant knowledge area, and it is then responsible to develop that portion of work and ultimately submit it back to me, which I will include ultimately into the project management plan. Right? Are we okay till now? Yes, sir, it is okay. So project management plan started in the beginning and it gave instructions to everybody. Therefore, there are certain broad level, high level instructions given by the project management plan, and that has to be written down like a preface or whatever you want to call it, which is the broad instruction for all other knowledge areas. And then each of the knowledge area may start its planning. Now, I don't say that all the knowledge areas are working in sequence or parallel, but they can all work in parallel, but it is important that they start working after the scope has been established. Therefore, the very first thing after we initiate the integration work, the project management plan, we start developing the project management plan, the very next thing we do is the scope management. So let's turn over to the scope management. We see four processes there. Plan scope management, collect requirements, define scope, and create WBS. Now, before we go into the detail of each one of these processes, let me tell you that you can see the scope management, project scope management knowledge area has four planning processes. Whatever the knowledge area is, if it has got more than one processes, like there are many which have only one process, if it has got more than one processes, you must know that the very first process must establish the rules of the game. And planned scope management will establish the rule of the game for scope. If you look in time management, you will see the first process is planned schedule management. That will establish the rule of the game for scheduling. If you look at cost, it's planned cost management. So what are these planned scope management, planned schedule management, planned cost management? These are the processes which will develop the relevant management plan. From planned scope management, we will get the scope management plan. From schedule management, planned schedule management, we get the schedule management plan. There will be a management plan from every knowledge area. And that would always be the first thing you do when you start planning that knowledge area. And that plan, management plan, does not include the actual details of the work. It just includes the mechanism to be adopted while you are doing that work, while you are planning. Like you see here, we have got collect requirements. Then how to collect requirements, what are the rules and principles to collect requirements would be given somewhere in the management plan. How to define the scope would be, the instructions would be given there, and those instructions will even include what tools are allowed to be used for this purpose. But what will be the scope of this project is not to be exactly covered in scope management plan. Scope management plan will tell you how to develop the scope, what principles, what rules, what tools, and what techniques you will be allowed to use. But at this stage, when we are making a management plan, we do not know what will it turn out, but we are establishing rules. So every knowledge area, the very first process where there is only one process, then that is the process. The very first process is responsible for creating the management plan for that knowledge area. Then whatever are the subsequent processes would abide by that management plan, work exactly in accordance with the management plan instructions.
like, collect requirements, then it will collect requirements according to the instructions given in the management plan. Define scope, so it will follow that, and every time the things will come out of one process and will be input into the next process, and the output will be value added subsequently till the time you reach the last process. When you reach the last process, that is the point where everything is united, is unified, and it forms a shape which is doable. This doable shape is properly tweaked for any changes, for any contingencies, and when we are sure that this is what it is which we want implemented, then we get the final approval from the boss, from the project sponsor on that, and once he approves that, we will say this has now become a baseline. And if you remember correctly, we only had 3 baselines: scope baseline, schedule baseline, and cost baseline. Although we can have baselines with all other knowledge areas also, but that is not important. Why? Because any change in any one of the other knowledge areas would actually affect any one of these things: scope, time, or cost. So these are my 3 project objectives. So if I can control these 3 items, I can control my project. But as far as the planning is concerned, planning will be done for every knowledge area. But baselines, I am only relying on these 3 baselines: scope, time, and cost. I also told you yesterday that there has to be at least one management plan from every knowledge area. Integration has a management plan, but that is the parent plan. That is the project management plan. And everything else will be included in it. Therefore, we are left with 9 knowledge areas feeding into integration. These 9 knowledge areas will contribute 9 management plans. But two of the knowledge areas are such they will not be contributing only 1 but 2 management plans. Can someone remember which were those areas which will contribute 2 management plans? Jijna, anyone? Sir, scope. Scope. And the other one is? जी आबिद, आप बताएंगे? Quality, sir. Sir, very nice. Okay, now let us enumerate what are those plans. Let us start from scope. What are the plans which will be created, management plans which will be created from scope? जी, अब मैं पूछता हूँ, आबिद आप बताएंगे स्कोप से कौन सा मैनेजमेंट प्लान निकलेंगे, कौन से निकलेंगे? सर, स्कोप से प्लान स्कोप मैनेजमेंट। जी आबिद। सर, इससे एक तो स्कोप मैनेजमेंट प्लान निकलेगा। ओके, और दूसरा? WBS। नहीं, मैनेजमेंट प्लान की बात करनी है। एक और चीज इसमें होती है जो हमने पहले जिक्र किया था, वो है रिक्वायरमेंट्स मैनेजमेंट प्लान। क्योंकि जब हम रिक्वायरमेंट्स इकट्ठे करेंगे ना स्टेक होल्डर से, तो वो भी बड़ा सेंसिटिव काम है, और रिक्वायरमेंट्स को मैनेज करना भी एक इशू है। स्टेक होल्डर बार बार अपनी ख्वाहिश चेंज करेगा, वो कहेगा नहीं ऐसे नहीं, मैंने तो ऐसे बताया था। तो रिक्वायरमेंट्स को मैनेज करना भी एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है। तो स्कोप एस्टेब्लिश करने से पहले हमें रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करनी पड़ती हैं, और उनको कलेक्ट करने के लिए एक मैनेजमेंट प्लान चाहिए। तो पहले इसमें 2 मैनेजमेंट प्लान हम बनाते हैं, एक रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान और एक स्कोप मैनेजमेंट प्लान। ठीक है अमित? ओके सर। ओके, गाजी जरा बताइएगा टाइम और कॉस्ट का क्या क्या प्लान होंगे? टाइम का प्लान कौन सा होगा? जी आवाज आ रही है गाजी? शेड्यूल बनेगा इससे सर? नहीं, मैं आउटपुट्स की बात कर रहा हूं, मैं मैनेजमेंट प्लान की बात कर रहा हूं। जी क्या कहते हैं?
टाइम के लिए सर? हाँ जी, मैनेजमेंट प्लान कौन सा बनेगा? जो स्केड्यूल आप बोल रहे हैं ना, स्केड्यूल तो अल्टीमेट आउटपुट है, वो तो अभी नहीं बनेगा। ठीक है सर। तो इधर कोई मैनेजमेंट प्लान बनेगा, उसका उसका नाम लीजिएगा। सर शेड्यूल मैनेजमेंट प्लान सर। एग्जैक्टली स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान बनेगा। कॉस्ट से कौन सा बनेगा? तो सिंपल वही कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान। कॉस्ट मैनेजमेंट प्लान जी सर। और इसी तरह हम चलते हैं क्वालिटी का। जनाब कुरातुलैन से पूछते हैं जी। कुरातुलैन सर प्लान क्वालिटी मैनेजमेंट नहीं, प्लान क्वालिटी मैनेजमेंट तो प्रोसेस, क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान, क्वालिटी मैनेजमेंट प्लान ये तो एक हो गया, एक और भी होता है यहाँ पर। सर क्वालिटी कंट्रोल प्लान। नहीं, quality assurance and quality control is part of quality management and it is included in quality management plan. एक चीज होती है उसे हम कहते हैं, मैंने जिक्र किया था पहले भी, प्रोसेस इंप्रूवमेंट प्लान। जब आप क्वालिटी अश्योरेंस करते हैं और आप कोई गलती पकड़ लेते हैं, कोई प्रोसेस में गड़बड़ आपको नजर आ जाती है, तो आप उसको दुरुस्त कैसे करेंगे, दैट इज द प्रोसेस इंप्रूवमेंट प्लान। और बाकी जनाब बाकी एरियाज जो हमारे रह गए उनका तो एक एक प्लान है। तो रिजवान साहब आप जरा शुरू हो जाएं, ह्यूमन रिसोर्स ऑनवर्ड्स। सर ह्यूमन रिसोर्स में तो होता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इसका मैनेजमेंट प्लान। आपने मैनेजमेंट प्लान का नाम बताना है सिर्फ। सर आवाज सर कट रही थी। हाँ, आपने सिर्फ मैनेजमेंट प्लान बताना है, आपने बाकी आउटपुट्स नहीं बताने। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सर, मैनेजमेंट प्लान जी सर। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट सर, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट सर। नहीं मैनेजमेंट सर, मैनेजमेंट ना कहिए, मैनेजमेंट प्लान, मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान, स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्लान, कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट प्लान एंड रिस्क मैनेजमेंट प्लान। ये जरूरी है, ये मतलब इसका पूरा नाम लेना जरूरी है। और जिस प्रोसेस के थ्रू ये बन रहा है वो होती है, जैसे स्टेक होल्डर, द प्लान स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, ये प्रोसेस का नाम है। आउटपुट क्या है? स्टेक होल्डर मैनेजमेंट प्लान। प्रोसेस है प्लान कम्युनिकेशन मैनेजमेंट और आउटपुट क्या है? कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान। तो ये जरा प्रोसेस में और उसके आउटपुट को जरा थोड़ा डिफरेंशिएट करने की जरूरत है। ये स्पेसिफिकली नॉमेनक्लेचर या नेम जो है इसी सीक्वेंस में और उसी तरह से लिए जाएं तो बेहतर है। सर ये जी फिर बोलिएगा। सर ये रिसोर्स लेवलिंग का भी तो प्लान होता है? नहीं, रिसोर्स लेवलिंग इज पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लान। नहीं सर, वो जो एस्टिमेट एक्टिविटी रिसोर्सेज, जब हम रिसोर्स को करते हैं, उसका काम दो जगहों पे आता है ना। एक तो उसका वो है टाइम के अंदर होता है, जब आप एस्टिमेट रिसोर्सेज लगाते हैं, और जब डेवलप शेड्यूल करते हैं तो उस जगह पे हम उसकी रिसोर्स लेवलिंग करते हैं। वो एक अंदरूनी एक्टिविटी है, उसका कोई प्लान ऐसा नहीं होता। वो टाइम मैनेजमेंट की एक अपनी एक्टिविटी है। दिस इज रिलेटेड टू ऑल रिसोर्सेज, बट स्पेसिफिक तो अगर ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स की लेवलिंग जो होती है उसके बारे में हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान में इंस्ट्रक्शंस छोड़ते हैं। ठीक, अलग से इसका मैनेजमेंट प्लान नहीं होता। तो मैनेजमेंट प्लान जो है ये हमने जो बोल दिए यही है। जी आबिद, आबिद जी मैनेजमेंट का दूसरा प्लान सर काइंडली रिपीट कर लें। किसका जी? क्वालिटी मैनेजमेंट का जो दूसरा प्लान है उसका नाम काइंडली आप। उसका नाम है जी प्रोसेस इंप्रूवमेंट प्लान। प्रोसेस इंप्रूवमेंट प्लान। थैंक यू सर। तो अब ये कितने प्लान हो गए जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर जो जाएंगे? उसके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अलावा और कितने प्लान हो गए? एक मिनट, हाँ जी, टोटल कितने प्लान जी? 11 सर। 11। और 11 में 9 तो एरियाज हैं और 2 एक्स्ट्रा प्लान हैं। एक स्कोप की तरफ से रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान आ रहा है और क्वालिटी की तरफ से प्रोसेस इंप्रूवमेंट प्लान हो रहा है। ये तो हो गए मेजर 11 प्लान, बुनियादी तौर पे ये हैं। लेकिन मैंने शायद आपसे जिक्र किया था कि 2 और भी प्लान हो सकते हैं ऑप्शनली, और वो हैं चेंज मैनेजमेंट प्लान एंड कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान। अब मैं थोड़ा सा आपको ये ब्रीफ कर दूं कि ये होता क्या है। चेंज मैनेजमेंट प्लान वुड इंक्लूड कि कोई भी तब्दीली अगर प्रोजेक्ट में लानी है तो उसका तरीकाकार क्या होगा।
चेंज कैसे मूव की जा सकती है, कौन मूव कर सकता है, किस सूरत में मूव कर सकता है, उसका फॉर्मेट क्या होगा, कौन किसको देगा, वो उसके साथ क्या सलूक करेगा, अप्रूव कौन कर सकता है, अगर अप्रूवल हो गया तो क्या करना है, ना हुआ तो क्या करना है, ये सारी बातें जो हैं ये चेंज मैनेजमेंट प्लान के अंदर है। लेकिन इसको मैंने क्यों कह रहा हूं कि ऑप्शनल है, क्योंकि चेंज तो किसी भी नॉलेज एरिया के अंदर हो सकती है। इसका मतलब है कि हमने जो रेलेवेंट मैनेजमेंट प्लान्स बनाए थे, बुनियादी तौर पे उन मैनेजमेंट प्लान्स की अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अपनी अपनी चेंज जो उनके प्लान के अंदर आनी है, उन एग्जीक्यूशन के दौरान या मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के दौरान, उसके बारे में इंस्ट्रक्शंस बनाए और उन इंस्ट्रक्शंस को वो मतलब स्कोप की अलग इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, टाइम की अलग हो सकती हैं, कॉस्ट की अलग हो सकती हैं, बट essentially speaking the relevant management plan should be responsible for the change management of that knowledge area। एक तो ये पॉइंट है, ये बात को समझ आई कि रेलिवेंट मैनेजमेंट प्लान के अंदर ही चेंज का निजाम दिया होता है, लेकिन इसके कुछ गुड पॉइंट्स भी हैं और बैड पॉइंट्स भी हैं। गुड पॉइंट तो ये है कि अगर चेंज की कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है किसी स्पेसिफिक नॉलेज एरिया के हिसाब से, जो कि टाइम में चेंज और तरह से होती है, स्कोप में और तरह से होती है और कॉस्ट में और तरह से होती है, या किसी हर नॉलेज एरिया में और तरह से होती है, तो इसका मतलब है कि वो फिर स्पेशलाइज्ड तरीकाकार उसके पास ही होगा और वो जानेगा। इसका नुकसान ये बनता है कि अगर सबका अपना अपना तरीका है तो कहीं ऐसा ना हो कि कंसिस्टेंसी लूज हो जाए। मतलब ये है कि वो स्कोप वाला कहे जी मेरे फॉर्मेट ही शक्ल ही डिफरेंट है, फॉर्म ही डिफरेंट है, और टाइम वाला कहे मेरा तो और तरह का फॉर्म है और हमारा प्रोसीजर और है। तो इसको यूनिफाई करने के लिए अगर इन सारे चेंज मैनेजमेंट की जो इंस्ट्रक्शंस हैं या हिदायत हैं, उनको एक जगह पे यूनिफाई कर लिया जाए। भले अब दो बातें हो सकती हैं, या तो जेनरिकली यूनिफाई कर लिया जाए कि जी जनरली बस ये फॉर्मेट होगा और सारे इसी के तहत चलेंगे, एक जेनरिक मेथड बना लिया जाए, या फिर दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि एक ही जगह के ऊपर कंपाइल करके उसके अंदर इंस्ट्रक्शन दे दें कि स्कोप के लिए हमें इन चीजों का ख्याल रखना है, चेंज मैनेजमेंट में टाइम के लिए इसका रखना है, कॉस्ट के, लेकिन हो सब कुछ वो एक ही प्लान का हिस्सा, तो उसको कहते हैं चेंज मैनेजमेंट प्लान। तो ये जरूरी इसलिए नहीं है कि अगर तो आपके रेलेवेंट मैनेजमेंट प्लान्स के अंदर कवर्ड है तो अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी ऐसी है या आपकी प्रोजेक्ट की कम्प्लेक्सिटी ऐसी है, तो आप चाहें तो इसको एक अलग मैनेजमेंट प्लान के तौर पे बना सकते हैं। एक बात, चेंज मैनेजमेंट प्लान किस चीज से डील कर रही है? चेंज किसी एक चेंज से डील कर रही है। एक दफा जब कोई चेंज करनी होगी ना, तो हम कहेंगे यार ये इसको कंसल्ट करो चेंज मैनेजमेंट प्लान को और उसमें देखो कैसे लाते हैं चेंज। इट इज एड्रेसिंग वन चेंज, बट अबाउट ऑल द चेंजेस हैपनिंग इन योर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। ऑर्गेनाइजेशन में बल्कि प्रोजेक्ट की बात करें, प्रोजेक्ट के अंदर बड़ी चेंजेस आनी है थ्रू आउट, और उन सारी चेंजेस का रिकॉर्ड कहां रखा हुआ है आपने? चेंज मैनेजमेंट प्लान डज नॉट एड्रेस दैट। चेंज मैनेजमेंट तो एक चेंज करने का तरीका बता रहा है, उसका प्रोसीजर बता रहा है, उसके बारे में हिदायत दे रहा है, भाई उसका रिकॉर्ड कहां रखना है? तो चेंज पहले क्या स्टेटस था, फिर चेंज क्या हुई, उसका लॉग रखना है, फिर उसके बाद वो क्या बना। और आप एक प्लान बनाते हैं, आप कहते हैं जी ये मैंने प्लान बना दिया, बाद में फिर तब्दीली होगी चेंज के बाद, आपने कहा अब ये इसका वर्जन 2 बन गया, फिर वर्जन 3 बन गया, फिर वर्जन 4 बन गया, तो पुराने वर्जन उठा के हम बाहर गली में फेंक दें। We will not waste that data because that is very important. We need that data for comparison purposes, for analysis purposes. Therefore, we can't waste that. So, keeping a track of all the history of changes and documents, उनको कहीं लॉक करके रखा जाए, प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड रूम बना हुआ हो, उनके अंदर चीजें पड़ी हो, इसको कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का तरीका भी, इसका भी वही लॉजिक है कि हर नॉलेज एरिया अपना अपना कॉन्फ़िगरेशन का तरीका खुद बनाए और फॉलो करे, लेकिन अगर उसको हम यूनिफाई करना चाहते हैं तो हम उसको अलग से कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान की सूरत में भी बना सकते हैं। तो इसलिए इन दोनों को ऑप्शन कहा गया है कि ये अगर अलग से ना बने हो तो रेलेवेंट नॉलेज एरियाज कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट और चेंज मैनेजमेंट अपने अंदर ही इंक्लूड करेगा, और अगर आप यूनिफाई करना चाहते हैं तो फिर अलग से बना लीजिए
चेंज मैनेजमेंट का प्लान अलग और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान का प्लान अलग। इस तरह से देखा जाए तो 11 वो और 2 ये 13 मैनेजमेंट प्लान बन जाते हैं। लेकिन एक और भी स्कूल ऑफ थॉट है और वो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। पीएमआई का एक और स्टैंडर्ड है जी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के हवाले से, और जब वो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट को खोल के खोदता है, तफसील से बात करता है, वो कहता है कि कॉन्फ़िगरेशन बुनियादी तौर पे चेंजेस ही का तो रिकॉर्ड रखती है, कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस का ही तो रिकॉर्ड रखती है। इसका मतलब है कि चेंज मैनेजमेंट जो है वो कॉन्फ़िगरेशन ही का पार्ट होना चाहिए। बात मेरी समझ आ रही है आपको कि कॉन्फ़िगरेशन, अगर कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट एक मेन प्लान हो, उसके अंदर एक हिस्सा हो कि चेंज मैनेजमेंट कैसे करनी है और दूसरा हिस्सा हो कि उसका रिकॉर्ड कैसे रखना है, तो ओवरऑल ये बन जाएगा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान एंड द चेंज मैनेजमेंट विल बी इंक्लूडेड इन इट। और जो उसका हिसाब किताब रखना है उसको कहते हैं वर्जन कंट्रोल। सो इन दैट केस स्कूल ऑफ थॉट है, आप सोच सकते हैं ऐसा करना है वैसा करना है, या तीनों में से कोई भी तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, आप 2 के बजाय एक ही प्लान बनाएं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का, उसके अंदर एक पार्ट हो चेंज मैनेजमेंट के हवाले से और दूसरा पार्ट हो वर्जन कंट्रोल के हवाले से कि इनको किस तरह से रखना है, कहां रखना है और कैसे रखना है। तो ये जनाब, इस सूरत में अगर आप इस अप्रोच पे जाते हैं तो आपको फिर चेंज मैनेजमेंट का प्लान अलग से नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट प्लान का पार्ट ही बन जाएगा। एनीवेज जी, मैंने आपके सामने ये 2-3 ऑप्शन रख दी हैं। ये पीएमबीओके में ये सारी चीजें नहीं है। पीएमबीओके में तो हल्का सा इशारा दिया हुआ है कि जी ये प्लान होते हैं, और इसके अलावा ये भी जरूरी नहीं है कि यही 13, कोई फिक्स नहीं हो गया कि ये 13 प्लान ही होते हैं या ये 11 प्लान होते हैं या 14 होते हैं, व्हाटएवर। ये तो सिर्फ आपकी हिदायत है, आपके लिए गाइडलाइन है कि ये ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अगर से कि मैं कहता हूं जी मैं तो कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कर रहा हूं, मैं कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को डील करता हूं, तो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए तो आई विल हैव टू रीड द कंस्ट्रक्शन एक्सटेंशन टू पीएमबीओके इन कंजंक्शन विद पीएमबीओके, और जब मैं उसको पढ़ूंगा तो उसमें 3 नॉलेज एरिया एक्स्ट्रा दिए हुए हैं जो कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को अप्लाई करते हैं, तो उनके मैनेजमेंट प्लान भी तो आ जाएंगे बीच में। तो ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सी इंडस्ट्री से काम कर रहे हैं, और इसके ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही वाले मैनेजमेंट प्लान्स होंगे, और भी मैनेजमेंट प्लान, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान हो सकता है, एनवायरमेंट मैनेजमेंट प्लान हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। और ऐसा भी तो हो सकता है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप काम कर रहे हैं उसकी तरफ से आपको कोई हिदायत होंगे भी तुमने ये प्लान बनाने हैं। अब गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में वो एनवायरमेंटल एनालिसिस कराते हैं, तो उसका भी तो कोई मैनेजमेंट प्लान बनेगा ना। तो इस तरीके के साथ हमने सिर्फ ये बता दिया कि ये जो हिदायत सारी चीजों की हैं, हर नॉलेज एरिया को कैसे करना है, वो मैनेजमेंट प्लान कहलाता है, और ये सारे मैनेजमेंट प्लान जो है ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान का हिस्सा बन जाते हैं। ये तो होगी एक तरफ की कहानी। दूसरी तरफ की कहानी ये है कि व्हाट इज द नेट रिजल्ट ऑफ दैट होल प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस में मुख्तलिफ प्रोसेसेस चल रही थी, हर प्रोसेस का कोई मकसद था, उससे कुछ आउटपुट निकलता था, उस आउटपुट को फिर हम फर्दर प्रोसेस करते थे, फिर कुछ और निकलता था, फिर कुछ और निकलता था, अल्टीमेटली कोई हतमी चीज निकलती थी। और खास तौर पे वी वर कंसर्न अबाउट कि जो हतमी चीज स्कोप से और टाइम से और कॉस्ट से निकले उसको हम किसी तरह से फ्रीज कर लें, अप्रूव करवा लें और बेस लाइन कर लें। तो मेरे लिए वो 3 बेस लाइन्स इंपॉर्टेंट थी। हतमी शक्ल सिर्फ, जो बीच की शक्लें थी, जो बीच में जो शक्लें उसने इख्तियार करता रहा, डाटा बना, ये बना, एक्टिविटीज के नाम की लिस्ट बनी, फिर जनाब उनका सीक्वेंस बना, फिर उसका डायग्राम बना, फिर उसका गैन चार्ट बना, ये ऑल दिस इज कॉल्ड प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स। एंड दिस इज नॉट ओनली इन द एरिया ऑफ स्कोप, टाइम और कॉस्ट, दे आर फ्रॉम ऑल अदर नॉलेज एरियाज। मिसाल के तौर पे आप जब ह्यूमन रिसोर्स कर रहे होते हैं तो आपने वो जो जिक्र किया कि ह्यूमन रिसोर्स लेवलिंग का हिसाब किताब और बाकी बहुत से स्टाफिंग मैनेजमेंट प्लान, लोगों को हायर करने की क्या पॉलिसीज वगैरह हैं, वो तमाम हिसाब किताब, all those documents which you will formulate will all become part of the project documents. Now project document is not shown here. That is a kind of a central archive system where all those things which were used to create the final hatmi shakal, जो जिसको मैं baseline कह रहा हूं, उस तक पहुंचने के लिए जो कुछ बनाना पड़ा, जो यानी कि प्लानिंग के दौरान जो कुछ भी बना, वो सब का सब उसमें चला जाएगा, एक्सेप्ट फॉर द मैनेजमेंट प्लान्स एंड द बेसलाइंस। So all the management plans and all the baselines
put together is called the project management plan. Rest everything which is जो बच गए हैं कागजात और डॉक्यूमेंट्स और सब कुछ, they are called the project documents. ये ऐसा मकसद नहीं है कि हमने प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट जिस चीज को कह दिया तो अब वो बेकार हो गई, अब उसको उठा के हम बाहर फेंक दें. वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. जब भी कभी कोई चेंज आएगी तो मुझे वो प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स कंसल्ट करने पड़ेंगे कि अच्छा ये एक्टिविटी की ड्यूरेशन बदल गई है तो अब इससे क्या फर्क पड़ता है, टाइम पे क्या पड़ेगा, फलाने पे क्या पड़ेगा. तो रिकैलकुलेट करने के लिए मुझे सारा डाटा चाहिए होगा और उसके बाद बेसलाइन नई बनानी होगी, उसको एस्टेब्लिश करना होगा. तो इस तरीके के साथ मुझे वो डाटे को भी जो क्या कहते हैं प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी मैं चेंज रिक्वेस्ट की सूरत में अपडेट कर सकता हूं और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में भी तब्दीलियां आ सकती हैं. अब आप ये देखिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में कहां तब्दीलियां आ सकती हैं, उसकी बेसलाइनें बदलेंगी. और ऐसा भी तो मुमकिन है कि जो मैनेजमेंट प्लान जो हिदायत हमने बनाई हुई थी हर नॉलेज एरिया के हिसाब से, वो हिदायत हमें पता चले कि फलानी वाली जो हिदायत है वो अप्रोप्रिएटली हमें काम नहीं करने दे रही, वो हमें सही रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करने दे रही, तो उस सूरत में हम उस हिदायत को भी बदल सकते हैं. इसका मतलब है कि मैनेजमेंट प्लान्स के अंदर भी कोई तब्दीलियां थोड़ी बहुत हो सकती हैं, ऑल्दो दैट इज नॉट वेरी लाइकली कि उसमें तब्दीली होगी, ज्यादातर बेसलाइन में तब्दीली होगी या डॉक्यूमेंट्स में तब्दीली होगी. वो मैनेजमेंट प्लान्स अमूमी तौर पे तब्दील नहीं होते, लेकिन हो भी सकते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी जरूर जहन में रखिए. तो ये हो गया जी आपका प्लानिंग का पूरा काम, जो सबसे ज्यादा इसमें मुश्किल था क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोसेस यहाँ पर हैं. तो ये आपकी प्लानिंग होगी. प्लानिंग में आप ये देखें कि द आउटपुट विच इज कमिंग आउट ऑफ इट इज ईदर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान और द प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान इज गिवन टू हुम, यहां से कहां जाता है. पहली बात तो ये है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान शुरू में जो बनना शुरू हो गया था, तो वो ये प्लानिंग के दौरान भी ये जितनी भी प्रोसेस हैं यहाँ पर प्लानिंग के दौरान, इनकी सबका इनपुट भी वही है जिस हालत में भी है. ये नहीं है कि मुकम्मल हो चुका होगा तब इनपुट बनेगा, लेकिन उसमें हिदायत जनरल तो लिख दी थी ना, तो वो इनपुट है. जो भी कोई चीज कंप्लीट हुई, स्कोप अगर कंप्लीट हो गया, टाइम वाले को डाटा चाहिए, तो दैट मच डाटा इज contained in the project management plan so far. Therefore, project management plan was an input to every process of planning also. But once it is completed, then it is also an input to every process of execution, every process of monitoring and control, and every process of closing. तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान जरूरी है. एग्जीक्यूशन में इसलिए जरूरी है कि इसके मुताबिक एग्जैक्टली मुताबिक काम किया जा सके. मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में इसलिए जरूरी है कि हर प्रोसेस इस प्लान को सामने रखती है और इससे कंपेयर करती है कि हुआ क्या है, होना क्या था, हुआ क्या है, और उसके बाद अपना एनालिसिस करती है. क्लोजिंग में हम क्लोजिंग ऑडिट करने के लिए जाते हैं कि जब प्रोजेक्ट खत्म करने से पहले हम उसको चेक करते हैं कि जैसे सब कुछ हो गया है, सारी चीजें निकल, तो प्रोजेक्ट प्लान के अगेंस्ट चेक करते हैं. इसका मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट फ्रॉम हियर ऑनवर्ड. यहाँ की भी सब प्रोसेसेस को ये आउटपुट इनपुट के तौर पे मिलेगा और इसके बाद आने वाले सारे प्रोसेस ग्रुप, एग्जीक्यूशन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, क्लोज, सबको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान खानदानी तौर पे सबको ही मिलेगा. सो इट विल बी अ स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एवरीथिंग. और अभी तक अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये हम पहले डिसाइड कर चुके थे कि एंटरप्राइज मॉनिटरिंग फैक्टर और ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट भी तकरीबन सबको इनपुट मिलता है. अब मैं कह रहा हूं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान भी तकरीबन सबको इनपुट मिलता है. तो अब ये तीन चीजें तो आपके पक्के इनपुट तकरीबन हो ही गए ना. अब आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अगर कहीं मैं इनपुट में दिखाऊं कि जहां प्रोजेक्ट प्लान इन हो रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं. आपको पता है कि प्रोजेक्ट प्लान इन होना ही है, हर चीज में इन होना है. इसके बाद जनाब हम चलते हैं एग्जीक्यूशन की तरफ. एग्जीक्यूशन किधर गया जी, एक मिनट. ओके, एक मिनट में आ जाएगा जी. ये आ गया जी, एग्जीक्यूशन आपके सामने आ गया. एग्जीक्यूशन के बारे में हमने ये कहा था कि प्लान तो बन गया ना जी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान मेरे पास मौजूद है विच कंटेन्स एवरीथिंग, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट मेरे पास मौजूद है, एग्जीक्यूशन कैन यूज देम.
and work according to the project management plan. And it is also told कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान ही के मुताबिक काम करना है. आपने अपनी कोई 1.5 इंच की मस्जिद अपनी नहीं बनानी, कोई डिसीजन आपने खुद से नहीं लेने, आपको इसकी अथॉरिटी ही नहीं है एग्जीक्यूशन में कि आप खुद से कोई फैसला करें या खुद से कोई कदम उठाएं. इसमें जो पेरेंट है जो सेंट्रल में दिखाया गया वो इंटीग्रेशन ही का प्रोसेस होगा, उसका नाम है डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क. अच्छा, आपने पीछे देखा था कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान जब बना तो स्कोप, टाइम और कॉस्ट की तीनों की बेसलाइनें कंसोलिडेट हो गई, जुड़ गई, जाके आपस में इकट्ठी हो गई और इकट्ठी होके जाके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर जुड़ गई. अब वो जो इकट्ठा गोला बना हुआ है उसी को देखने में उसी से एग्जीक्यूशन होनी है. और अलग अलग मुझे ना तो स्कोप को एग्जीक्यूट करने की जरूरत है, ना टाइम को और ना कॉस्ट को. मैं सिर्फ एक्टिविटीज करता जाऊंगा एज पर द गैंट चार्ट या स्केड्यूल, और मेरा स्कोप पूरा होता जाएगा, टाइम खर्च होता जाएगा, पैसा खर्च होता जाएगा और एग्जीक्यूशन इन प्रोग्रेस आ जाएगी. कहने का मकसद यह है कि तीनों चीजें आपस में बंधी हुई हैं. जब हम काम शुरू करते हैं तो स्कोप, टाइम और कॉस्ट की प्रोग्रेस शुरू हो जाती है. वो अलग बात है कि कितनी प्रोग्रेस सही हो रही है, ठीक हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, इसको देखना एग्जीक्यूशन का काम नहीं है. एग्जीक्यूशन का काम सिर्फ काम करवाना है. मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल जो कि इसके पैरेलल में ही चल रहा होता है. इधर एग्जीक्यूशन शुरू हुई है, पीछे मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल वाले अपना कमरे में बैठ गए हैं, रिपोर्टें पढ़ पढ़ के आप उनको भेजे जा रहे हैं, ये हो गया, वो हो गया, और वो उसके मुताबिक. ये बिल्कुल जैसे फौज में आपका वो ऑप्स रूम होता है, ये वो वाला कॉन्सेप्ट है. मतलब हम इसको प्रोजेक्ट ऑफिस कहते हैं, आप इसको ऑप्स रूम कहते हैं, लेकिन जो कुछ भी कार्रवाई आपके इर्द गिर्द हो रही होती है उसकी लम्हे लम्हे की रिपोर्ट जो है वो इस प्रोजेक्ट ऑफिस में आनी चाहिए, इसको मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल कह लीजिए, ताकि आप उसको प्लॉट कर सकें, कंपेयर कर सकें और डिसाइड कर सकें कि मुझे इसमें कहां गड़बड़ हो रही है और कहां ठीक करने की जरूरत है. और वहां से अहकामात वहां से जारी होते हैं. चेंज रिक्वेस्ट बनती यहां है, उस पोज यहां की जाती है और यहां से अप्रूवल या रिजेक्शन का सिलसिला होता है, तब जाके आपके प्लान में तब्दीली की जा सकती है. तो मतलब ये है कि ऑल्दो हम ये सब चीजें कर रहे होते हैं, लेकिन हम चूंकि फॉर्मली बहुत कम करते हैं, इसलिए हम इन चीजों को इग्नोर करते हैं या टेक इट फॉर ग्रांटेड कर लेते हैं. राइट. तो अभी एग्जीक्यूशन में जो सेंट्रल प्रोसेस है वो इंटीग्रेशन का है, डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क. और इसकी क्या जिम्मेदारी है? इसकी जिम्मेदारी है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को खोल के रखो सामने और जैसे जैसे जिस तरतीब में काम लिखा हुआ है वैसे वैसे करते जाओ. बस दैट्स इट. इसने और कुछ नहीं करना. जैसे जैसे काम लिखा हुआ है वैसे वैसे काम करते जाओ. लेकिन ये तो काम लिखा हुआ है, काम का माहौल भी तो एक है. स्कोप, टाइम एंड कॉस्ट का तो हमने कह दिया कि यहां इसका अलग से रोल कोई नहीं बनता था. रिस्क का हमें वैसे अंदाजा है कि रिस्क तो जब अक्कर करेगा तो हम उसको कोई रिस्पॉन्ड करेंगे ना. रिस्क को तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे, और रिस्पॉन्ड तो हम मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में करते हैं, क्योंकि वहां बैठ के हम ऑब्जर्व करते रहेंगे कोई रिस्क आया नहीं आया, आया नहीं आया. अगर आया तो कुछ कर लेंगे. लेकिन एग्जीक्यूशन में रिस्क का कोई रोल नहीं. एग्जीक्यूशन में सिर्फ प्लान का रोल है. प्लान को एग्जीक्यूट करना है, डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क करना है. इसलिए रिस्क का भी यहां रोल नहीं. इसका मतलब ये हुआ कि 4 नॉलेज एरिया तो यहां से निकल गए, स्कोप, टाइम, कॉस्ट और रिस्क. बाकी रह गए 6. क्या आपको 6 नॉलेज एरिया यहां नजर नहीं आ रहे? सेंटर में इंटीग्रेशन है एक, ऊपर इसके स्टेक होल्डर है, राइट साइड पे ह्यूमन रिसोर्स, कम्युनिकेशन, प्रोक्योरमेंट, क्वालिटी. 6 नॉलेज एरिया, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 यहां रिप्रेजेंट हो रहे हैं. और ये भी नजर आ रहा है कि सेंटर में इंटीग्रेशन वाला प्रोसेस है, डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क, जो कि स्कोप, टाइम, कॉस्ट को कंसोलिडेटेडली एग्जीक्यूट कर रहा है. अगर एग्जीक्यूशन सारी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान के अंदर है तो ये जो 5 एरियाज यहां क्या कर रहे हैं? ये असल में उस काम का माहौल बना रहे हैं. उस काम के लिए आपको रिसोर्सेज रेडी करके दे रहे हैं, या उस काम जो हो रहा है उसके मुतालिक कुछ कर रहे हैं. अब हम देखते हैं कि वो क्या काम है जो काम के होने के दौरान कौन से इंतजामी अमूर हैं जो उसके इर्द गिर्द संभालने की जरूरत है. सबसे पहले मैं चलता हूं क्वालिटी की तरफ. क्वालिटी, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था कि क्वालिटी
कि एक तो अश्योरेंस होती है और एक कंट्रोल होता है। अश्योरेंस का ताल्लुक काम से है, प्रोसेस से है। जब काम हो रहा होता है तब हम ये इंश्योर करते हैं कि आया कि ये काम ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। दिस इज कॉल्ड क्वालिटी अश्योरेंस। जब काम हो जाता है, एक प्रोसेस हो जाता है, एक एक्टिविटी हो जाती है, तो उससे कोई आउटपुट निकलता है ना। आउटपुट को देखना, डिलीवरेबल को देखना अश्योरेंस का काम नहीं है। Assurance has absolutely nothing to do with the deliverable. It does not concern itself with the deliverable. It only concerns itself with the work. The process जो चल रहा है सिर्फ उसके काम को देखता है और ये कुछ नहीं देखता। कंट्रोल मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में आएगा, क्योंकि डिलीवरेबल यहां से बन के उसके पास जाएगी, वहां पे होगा क्वालिटी कंट्रोल, वो उससे भुगत लेगा डिलीवरेबल के साथ। यहां पे क्वालिटी अश्योरेंस होनी है। और क्वालिटी एश्योरेंस जैसे मैंने कहा, जिस वक्त काम हो रहा हो तब होनी है। और कल हमने इसके बारे में थोड़ी बहुत बात की भी थी, और हमने कहा था क्वालिटी एश्योरेंस, अगर मैं क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर हूं तो मैं किसी भी प्रोसेस को जब चेक करने जाऊंगा तो मेरा पहला सवाल क्या होना चाहिए? जी, आप में से कोई मुझे बताएगा? व्हाट इज माय फर्स्ट क्वेश्चन आई शुड आस्क? क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स क्या कर रहे हैं? क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स चलें, लेकिन दिस इज नॉट द मेन थिंग। मैं क्वालिटी एश्योरेंस करने जा रहा हूं, मैं क्या देखने जा रहा हूं? काम देखने जा रहा हूं। तो मैं उससे क्या पूछूं कि भाई क्या क्या कर रहे हो तुम? किस स्टैंडर्ड पे कर रहे हो, या कैसे, जिसके अगेंस्ट मैंने ऑडिट करना है उस चीज का, रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट। आई नीड टू हैव अ डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर। मैं उससे ये पूछूंगा, भाई आपके पास कोई डॉक्यूमेंटेड जो आप काम कर रहे हो, इसका कोई प्रोसीजर कहीं लिखा हुआ है? अगर नहीं लिखा हुआ तो मैंने पहली गलती तो यही पकड़ ली। भाई ये जो कुछ कर रहे हैं जब लिखा हुआ नहीं है, जब कोई तरीका बना हुआ नहीं है, तो इसका मतलब है कि कंसिस्टेंसी नहीं आ सकती। एक आदमी अपने तरीके से करेगा, दूसरा अपने तरीके से करेगा, तो यहां तो पहले ही फ्लॉ यहां पे आ गया। अगर डॉक्यूमेंटेड नहीं है तो डॉक्यूमेंट करवाना आपका काम है। नंबर 2, अगर डॉक्यूमेंटेड है तो फिर मैं क्या देखूंगा? जी, आया के उस डॉक्यूमेंटेड काम के मुताबिक एक्चुअल वर्क फॉलो कर रही कि नहीं, जी कि फॉलो कर रही हूँ उस डॉक्यूमेंटेशन को Exactly. कि नहीं। उसके मुताबिक काम हो भी रहा है कि नहीं हो रहा, दूसरी चीज। और अगर नहीं हो रहा या हो रहा है तो मुझे एक मेरा और भी फर्ज बनता है कि लाजमी बात है, करने वाले तो लोग हैं ना, टीम मेंबर्स हैं। मैं टीम मेंबर्स का टेस्ट ले सकता हूं, उनसे क्वेश्चन आंसर कर सकता हूं, उनसे इंटरव्यू कर सकता हूं, जिससे मुझे पता चलेगा कि भाई इनको प्रोसीजर का पता है भी कि नहीं है। और अगर मैं ये फील करूं कि इनको प्रोसीजर का पता नहीं है, प्रोसीजर बिल्कुल ठीक बना हुआ है और फॉलो भी होना चाहिए, लेकिन इनको प्रोसीजर का पता ही नहीं है, इसलिए गड़बड़ हो रही है, तो इस सूरत में मुझे उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत है। पहली सूरत में मैं प्रोसीजर बनाने की जरूरत थी, अगर प्रोसीजर बना हुआ है तो शायद ट्रेनिंग देने की जरूरत है। अगर ट्रेनिंग मिली हुई है तो फिर मुझे प्रोसेस को और इन डेप्थ देखने की जरूरत है कि भाई अब मैं क्या देख रहा हूं। अभी ये कि वो जो बेसिक काम थे वो तो है कि प्रोसेस भी बना हुआ है और काम भी सही हो रहा है, मैंने बंदा भी देख लिया, काम भी देख लिया। अगला काम मैं ये देखता हूं कि यार ये प्रोसेस जिस तरह से चल रहा है, क्या ये इससे बेहतर भी चलाया जा सकता है? आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोसेस इंप्रूवमेंट। ये जो प्रोसेस जिस तरह से चल रहा है, जो लिखा हुआ तरीका है, डॉक्यूमेंटेड तरीका है, क्या इसको इससे ज्यादा भी बेहतर चलाया जा सकता है? मैं ये नहीं कह रहा कि आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा कि वाकई यार ये यहाँ पे बनाया, लेकिन हो सकता है कि आप उसमें कोई बग ढूंढ लें, या अगर बग ना भी हो तो हो सकता है कि आप उसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटी देख लें। तो इसका मतलब है कि ये एक तुक्का है, अगर कोई लग गया तो लग गया। तो मैं क्वालिटी का काम ये करूंगा तो कुछ ना कुछ तो मैं पकड़ूंगा, कुछ ना कुछ एश्योरेंस में मुझे प्रोसेस इंप्रूवमेंट में मैं ले जा सकता हूं। लेकिन आपको जो सबसे बड़ी हेल्प मिलती है क्वालिटी एश्योरेंस में, वो मिलती है क्वालिटी कंट्रोल की मेजरमेंट्स से। जब ये इधर से जो भी काम होके जाता है और डिलीवरेबल चेक होता है क्वालिटी कंट्रोल में, तो वहां से जो स्टैटिस्टिक्स आती हैं, जो मेजरमेंट्स का डाटा आता है, वो बताता है कि यार ये ज्यादा बड़े एरर्स आ रहे हैं, ये फलानी
फलानी मशीन के काम में बड़े एरर्स आ रहे हैं, तो मैं फिर उसी मशीन पे फोकस कर जाता हूं और उस एरर की वजह को डिग डाउन करने की कोशिश करता हूं, और अल्टीमेटली जब मैं उसको हंट डाउन कर लूं तो मैं उसे पकड़ के सही कर सकूंगा। तो ये क्वालिटी एश्योरेंस का काम है। इसका मतलब है क्वालिटी कंट्रोल की मेजरमेंट क्वालिटी एश्योरेंस के बेहद काम किए हैं। ऑल्दो क्वालिटी, ये कोई मस्ट नहीं है कि क्वालिटी कंट्रोल नहीं होगा तो क्वालिटी एश्योरेंस नहीं हो सकता, लेकिन क्वालिटी एश्योरेंस अपना काम करता रहेगा, और लाजमी बात है कि इसका बड़ा मेजर काम है, इसने लोगों को ऑडिट करना है, अपना प्रोसेस को के प्रोसीजर्स देखने हैं, सब कुछ करना है, वो करेगा। लेकिन इसको एक बड़ी सपोर्ट मिल जाएगी, या जिसे कहते हैं एक बड़ा गैप, जो ये इसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, जो नजर नहीं आ रही थी चीजें, वो उसको आंखें लग जाएंगी अगर इसको क्वालिटी कंट्रोल का डाटा, मेजरमेंट का डाटा मिल जाए तो। ये तो है जी। इससे आपको इस बात का अंदाजा होगा कि भले एग्जीक्यूशन हो रही है, लेकिन साथ साथ क्वालिटी एश्योर करना एक काम जायज बनता है। अब आ जाइए जरा ह्यूमन रिसोर्स की तरफ। ह्यूमन रिसोर्स में हमारे पास 3 प्रोसेस हैं। हम कहते हैं पहले जनाब टीम को एक्वायर करो, फिर टीम को डेवलप करो, फिर टीम को मैनेज करो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी टीम को जनाब क्या कहते हैं कोई प्लाटून है और हमने उसको पहले तो सबको बुला लिया और फिर उनको जनाब हमने ट्रेनिंग दी, उन्होंने काम पे लगा दिया। ऐसे नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट में जो काम होना है वो तो वक्तन फवक्तन होना है। एक आदमी ने आज काम करना है, एक ने महीने बाद काम करना है, एक ने कुछ और करना है, एक ग्रुप ने अभी करना है, एक ग्रुप ने बाद में करना है। तो मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि जब जब जहां जहां जो काम होना है उसके रिसोर्सेज को बिफोर हैंड अपना एक फेयर मार्जिन रख के आप उनको मेक अवेलेबल करें, उनको तैयार करें और उनको काम पे लगाएं। मतलब जिस तारीख को उस काम ने शुरू होना है उससे पेशतर वो टीम मोबिलाइज हो चुकी हो, उसकी जो तैयारी करवानी है, जो उनको एज अ टीम तैयारी करवानी है, साथ बैठ के काम करने की आदत डालनी है या वटेवर, वो आप करवा चुके हों, और अब उस तारीख को आप इसे काम पे लगा दें। जब आप उसे काम पे लगा दें तो काम तो वही करेगा जो इंटीग्रेशन में दिया हुआ है, डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क, तो काम तो वहां से मिल गया। लेकिन अब वो परफॉर्म कैसा कर रहा है, इंडिविजुअल लेवल पे एक बंदा कैसा परफॉर्म कर रहा है, इसको देखना मैनेज प्रोजेक्ट टीम का काम है। जब तक वो काम होता रहेगा मैनेज टीम उस बंदे को देखती रहेगी, उसकी रिपोर्टिंग करती रहेगी और उसके सजा जजा का जिम्मेदारी देगी। तो जहां तक ह्यूमंस के साथ डीलिंग का ताल्लुक है, उनकी रिपोर्टिंग का ताल्लुक है, उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल्स का ताल्लुक है, एवरीथिंग हैपेंस इन मैनेज प्रोजेक्ट टीम। एज सच भले ये काम भी प्रोजेक्ट मैनेजर ही कर रहा हो या उसका सबऑर्डिनेट कोई कर रहा हो, लेकिन जो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के काम हैं उसमें इस काम का इंदराज नहीं होता। ये काम एग्जीक्यूशन के कामों में आता है, बंदों के साथ डील करना। इसलिए ये सारे काम एक्वायर, डेवलप और मैनेज प्रोजेक्ट टीम के काम ये एग्जीक्यूशन में ही होंगे, और ये ह्यूमन रिसोर्स का जो नॉलेज एरिया है ये वो वाहिद नॉलेज एरिया है जिसका कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो कंट्रोल चाहिए बंदों का कंट्रोल वो हमने एग्जीक्यूशन में ही कर लेना है मैनेज प्रोजेक्ट टीम के थ्रू। तो इसलिए इसका कोई कंट्रोल आपको मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में नहीं मिलेगा, बाकी सबके कंट्रोल होंगे। फिर आप आ जाइए जनाब इसके ऊपर प्रोक्योरमेंट की बात कर लेते हैं। पहले एग्जीक्यूशन के अंदर हमने अपना काम तो प्लान किया ही किया, साथ हमने ये भी प्लान किया, प्लानिंग के अंदर हमने ये भी प्लान किया कि कौन कौन सा काम हम खुद नहीं करेंगे और हमें सब कॉन्ट्रैक्टर्स को अवार्ड करना है। और हमने प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट प्लान के अंदर ये डिजाइन कर लिया, ये सारा हिसाब किताब बना लिया कि अच्छा ये काम तो फैसला हो गया कि हम बाहर से करवाएंगे, तो इनके सारे प्रोक्योरमेंट डॉक्यूमेंट्स बना लिए जाएं, जो रिकग्नाइज्ड या ऑथोराइज्ड सेलर्स हैं उनकी लिस्टें बना ली जाएं, कॉन्ट्रैक्ट जो करना है उसकी एक ड्राफ्ट कॉपी बना ली जाए। हर चीज पहले से करके रखी हुई है प्लानिंग में। एग्जीक्यूशन में हमने वो ठेके अवार्ड करने हैं। हमारा काम उन ठेकों के हवाले से सिर्फ इतना है कि उन ठेकों को अवार्ड करना है। इसका मतलब है प्रोक्योरमेंट वाला जो है एग्जीक्यूशन में क्या काम करता है कि जो ही वही बात जैसे ह्यूमन रिसोर्स में हमने कहा कि इस तारीख को काम शुरू होना चाहिए, इस तारीख से 3 महीने पहले बंदे हायर कर लो, उनको 2 महीने की ट्रेनिंग दो, फिर 1 महीना उनको
ग्रुप डायनेमिक्स उनकी सीधी करो, उनको साथ बैठ के डमी काम करवाओ और उसके बाद ना टाइम आ जाएगा, फिर वो इफेक्टिव काम करने के काबिल होंगे। एग्जैक्टली उसी तरह वो कॉन्ट्रैक्टेड वर्क किस तारीख को शुरू होना है उससे उतना पहले का मार्जिन रख के आप अखबार में इश्तेहार देंगे, आपको बिडें आएंगी, आप उनको जनाब प्रोसेस करेंगे, किसी को सिलेक्ट करेंगे, उसे कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करेंगे और उसके बाद काम शुरू हो जाएगा। ये वो मार्जिन आपने पहले देना है। तो हो सकता है एक से ज्यादा आपने सब कॉन्ट्रैक्टिंग करनी हो, अगर एक से ज्यादा करनी है तो आपकी पूरी एग्जीक्यूशन में मुख्तलिफ औकात में आप ये प्रोक्योरमेंट वाले काम कर रहे होंगे। लेकिन जब आपने कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया तो काम कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो होना है, जो प्रोक्योरमेंट वाले सब कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर होना है, उसकी जिम्मेदारी आपकी नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी। आपकी जिम्मेदारी यहां खत्म हो गई, आपने उसे दे दिया और आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट और इस सेलर को उठा के आप मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के हवाले करेंगे, वहां प्रोक्योरमेंट कंट्रोल के लिए बंदा बैठा होगा, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर नजर रखेगा। ये जो बात हम कह रहे हैं कि कौन कैसा काम कर रहा है, ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वगैरह वगैरह, दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। तो हमारा काम सब कॉन्ट्रैक्टेड वर्क के हवाले से सिर्फ ठेके देना है। इसके बाद हमारे दो नॉलेज एरियाज बच गए जी। कम्युनिकेशन और स्टेक होल्डर दोनों काफी क्लोजली रिलेटेड भी हैं, मिलते जुलते काम भी हैं। कम्युनिकेशन जैसे हमने प्लान किया, प्लान में हमने कहा कि जनाब कौन कौन कब कब किसके साथ क्या क्या कम्युनिकेट करेगा और कितनी फ्रीक्वेंसी से किया करेगा, ये हमने सब डिजाइन करके रख दिया कि कहां कहां कम्युनिकेशन होनी है, कितनी कम्युनिकेशन होनी है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा, क्या ये वीकली रिपोर्ट होगी, डेली रिपोर्ट होगी, ये पीरियोडिक रिपोर्ट होगी या इंसिडेंट रिपोर्ट होगी, ये सब बातें कम्युनिकेशन प्लान में लिखी हुई है। यहां पे हमने सिर्फ ये इंश्योर करना है एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, एग्जीक्यूशन में उसने ये इंश्योर करना है कि जैसा कम्युनिकेशन प्लान में लिखा हुआ था कि कब कब कौन सी कम्युनिकेशन होनी चाहिए, क्या वो कम्युनिकेशन वैसे हैपन हो रही है कि नहीं। अच्छा, मैं फिर यहाँ पे आपको कॉशन करूंगा कि हो रही है से हमें ये मतलब लगता है कि शायद हम उसका ऑडिट कर रहे हैं, हम उसको चेक कर रहे हैं, नहीं। ये चेक करना कंट्रोल कम्युनिकेशन का काम है कि ये हुआ कि नहीं हुआ। हो रही से मेरा मतलब ये है कि मैं ये इंश्योर करूं कि ये बंदे ने फलाने वक्त पे ये रिपोर्ट देनी है तो मैं उसको रिमाइंड करूं बिफोर टाइम। जैसे आपको ये ट्रेनिंग का एक रिमाइंडर ईमेल आती होगी, ठीक है, ये क्या है, ये आपके कम्युनिकेशन अश्योर करने का तरीका है कि अगर आप कहीं भूले हुए हैं, कोई और हिसाब किताब है, तो आपको रिमाइंड करा दिया जाए। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है कि वो इंश्योर करे कि सब लोग सही वक्त के ऊपर अपना काम करने के लिए हाजिर होंगे। ये कम्युनिकेशन जो है, दिस इज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन। और ये भी जरूरी नहीं है, मिसाल के तौर पे आपने थर्ड पार्टी को एक रिपोर्ट देनी है, तो मैं प्रोजेक्ट में जो मैंने कहा जी मैंने तो स्केड्यूल में लिख दिया कि आपने ये रिपोर्ट देनी है और प्लान आपको दिया हुआ है, तो मैं आपको पकड़ूंगा आपने दी क्यों नहीं। भाई बात मसला ये नहीं है कि मैं आपको पकड़ने के लिए ये सारा बंदोबस्त कर रहा हूं और बाद में आपको मैं कुछ सजा देना चाहता हूं। बात ये मेरे प्रोजेक्ट का बेड़ा गर्क हो जाएगा। मैं ऐसा होने का इंतजार ही क्यों करूं, मैं यही क्यों ना इंश्योर करूं कि जनाब इस बंदे को मैं बार बार रिमाइंड कराऊं, उसको उसकी इंपॉर्टेंस का एहसास दिलाऊं और ये इंश्योर करूं कि किसी भी तरह से वो इस अपॉइंटमेंट को मिस ना करे। ठीक है जी, मैं कोई क्या कहते हैं घात लगा के नहीं बैठा हुआ तो गलती कर मैं पढ़ना नहीं, मेरा ये कतन मकसद नहीं है, मेरा मकसद है गलती होने ही ना देना। तो ये है जी प्रॉपर कम्युनिकेशन के थ्रू मैं इंश्योर करता हूं। और मैं नॉर्मली एक एग्जांपल देता होता हूं कि एक दफा एक किसी से मेरी मीटिंग थी, एक मिनिस्टर साहब थे, तो उनकी सेक्रेटरी ने मुझे फोन किया कि जी सर आपने फलानी तारीख को इतने बजे आ जाना है और मीटिंग होगी। मैंने कहा जी ठीक है। अब वो काफी दिन थे बीच में, तो कोई मतलब 3-4 दिन बाद उसका फिर फोन आया, सर क्या हाल है आपके, ये है वो है, आपको याद है ना वो उनके पास आपने मिलने के लिए फलानी तारीख को आना है, तो आप जरा घंटा पहले पहुंच जाइएगा, मेरे पास आ जाइएगा पहले। तो ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। कुछ दिन और गुजरे तो मतलब अभी को बिल्कुल 1-2 दिन रह गए, तो फिर उसका फोन आया कि सर परसों आपने आना है, आपको याद है ना। तो जी ठीक है। एक दिन पहले फिर उसका फोन आ गया। जिस दिन निकलना था तो जाना था मीटिंग के लिए, उस दिन द वेरी फर्स्ट कॉल विच वोक मी अप वो उस सेक्रेटरी की थी। उसने कहा सर वो आपको पता है ना आप अभी उठ गए होंगे, तो शी वाज कीपिंग अ कंप्लीट ट्रैक ऑफ माय एक्टिविटीज कि आप अभी उठ गए होंगे, आप आज पहुंच जाइएगा वक्त पे, लेट ना हो जाइएगा। बहुत अच्छी बात है। इसी तरह जब मैं रास्ते में था फिर एक कॉल आई,
सर इस वक्त आप आधे रास्ते में होंगे और पहुंचने वाले होंगे, तो हम बस आपका इंतजार ही कर रहे हैं, आप पहुंचे, हम मैं आपको रिसीव करने के लिए खड़ी हुई हूँ। अच्छी बात है जी। जब मैं उनके ऑफिस की सीढ़ियां चढ़ रहा था तो फिर एक और कॉल आई। आप इसको ये ना समझें कि ये तो बड़ा ओवर हो गया, ओवर कुछ नहीं हुआ। शी मेड इट डैम श्योर कि किसी तरह से भी ये बंदा इस मीटिंग को मिस ना कर दे। उसने अपना पर्सनल एम्बिशन बना लिया कि नहीं, मैं तो ये मुलाकात करा के छड़नी है। दैट इज इंपॉर्टेंट। ये है काम आपके। आप ये हम प्रोजेक्ट मैनेजर बनके कोई बहुत फूल के पीछे एक बड़ी कुर्सी पे बैठ जाते हैं, ये बात नहीं है। आपका काम है इंश्योर करना कि हर काम एन उसके मुताबिक हो जैसे प्लान किया हुआ था। और ये पकड़ धकड़ से हासिल नहीं होने वाला काम। बाद में शिकायत शिकवे, गिले शिकवे और डी ब्रीफिंग से काम नहीं चलता। काम में गलती ही ना होने पाए, दैट इज द क्रक्स ऑफ इट। इसी तरह स्टेक होल्डर एंगेजमेंट भी इसी तरह है कि स्टेक होल्डर के साथ आपने नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस तो इकट्ठी करनी थी ना प्लानिंग के अंदर, कि वो कब क्या कहाँ जाता है, कितना इंटरेक्शन चाहता है। मैंने एक स्ट्रेटजी भी बनाई थी कैसे इंटरेक्शन करना है, मैं उसके हिसाब से उसके साथ ताल्लुकात इस्तवार भी रखने का इरादा रखता हूं। ये वो वक्त है जब वो ताल्लुकात इस्तवार किए जाएंगे स्टेक होल्डर के साथ। मैंने आपको कहा था 90% टाइम प्रोजेक्ट मैनेजर का कम्युनिकेशन में गुजरता है। वो स्टेक होल्डर के साथ कम्युनिकेट करेगा। प्रोजेक्ट के अलावा भी एक तो वो है ना कि मैनेज कम्युनिकेशन की, जहां पे कम्युनिकेशन स्टेक होल्डर को देनी है लेनी है। इसके अलावा भी आप उससे जाके मिलेंगे, उससे पूछेंगे सर क्या हाल चाल है, आप प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस से खुश जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, कोई और मसाइल है, उसको ऑन बोर्ड रखेंगे। आपको पता है इस वक्त ये हो रहा है, फलानी जगह पे ये हो रहा है, हम प्रोजेक्ट कितना अच्छा जा रहा है, फलानी चीज ऐसे हो रही है। तो मतलब वक्तन फक्तन आप उसको अपडेट रखेंगे फॉर्मल रिपोर्ट्स के अलावा भी। और खास तौर पे इस बात का ख्याल रखिए कि उस स्टेक होल्डर्स की जो नीड्स और एक्सपेक्टेशंस हैं वो हाईलाइट हो रही हों आपकी उस मीटिंग में। इससे क्या होगा, वो ऑन बोर्ड रहेगा। पहले हमने प्लानिंग में अगर उसको इन्वॉल्व किया था और फिर भूल गए, फिर उनसे बात ही नहीं की और हम एग्जीक्यूशन में अपनी बिजी हो गए, अब काम करने के बाद आपको बताएंगे हमने अच्छा किया कि बुरा किया। अगर मैं साथ साथ उसके साथ इन टच रहूंगा तो वो अपने कमेंट्स भी देता रहेगा। अगर ऐसा हो जाता तो ज्यादा अच्छा था ये, तो आप उसको समझा भी सकते हैं। अगर उसकी कोई मिसकंसेप्शन है तो आप उसको साथ साथ समझा भी सकते हैं कि सर ये आप बात तो अच्छी करें लेकिन ये हमारे प्रोजेक्ट के स्कोप से बाहर निकल जाएगा। तो ये काम शायद हम करते भी हैं लेकिन ये फॉर्मली करने की भी जरूरत है। ये जनाब सारे काम हैं जो आपके एग्जीक्यूशन के दौरान होने होते हैं इस सारे प्रोसेस में। इसके साथ इसके बाद जनाब मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल है। सॉरी, ये है जी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। अभी आपके सामने आ जाएगा थोड़ी देर में। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में भी प्लानिंग की तरह सारे नॉलेज एरिया रिप्रेजेंट हो रहे हैं लेकिन सिवाय एक के, और वो आपको पता ही है कि ह्यूमन रिसोर्स की हमने अभी बात की है कि ह्यूमन रिसोर्स का यहां काम नहीं है, बाकी सबका काम है। और मजे की बात है कि सबका काम क्या है, कंट्रोल करना काम है सब काम। स्कोप को कंट्रोल, स्केड्यूल को कंट्रोल, कॉस्ट को कंट्रोल, सबको कंट्रोल। सिर्फ एचआर का कंट्रोल नहीं है और वो था मैनेज प्रोजेक्ट टीम, जो कि एग्जीक्यूशन में हो गया। यहां पे हम क्या करेंगे, यहां इंटीग्रेशन जो कि हर जगह मौजूद होता है सेंट्रल रोल अदा करता है। यहां इसके सेंट्रल रोल में एक नहीं दो प्रोसेस है। एक है मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क और दूसरा है परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल। मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क मैंने इसको नाम दिया हुआ है चीफ एनालिस्ट। परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल को मैं कहता हूं चीफ कंट्रोलर। ये दो जो हैं ये अलग अलग किस्म का काम करते हैं। एक का काम है चीजों का थॉरो एनालिसिस करना और दूसरे का काम है उसके ऊपर फैसले देना। और बाकी सारे जो कंट्रोल्स हैं वो इन दोनों को ही रिपोर्ट कर रहे हैं। और वो जो जो कुछ भी बना रहे हैं कर रहे हैं वो रेलेवेंट, अगर चेंज रिक्वेस्टें जो भी जा रही हैं वो इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल को जाएंगी, जहां से भी बन के आए, किसी भी कंट्रोल ने बनाई हो। और जो वो अपना एनालिसिस देंगे वो सारे का सारा चीफ एनालिस्ट के पास जाएगा। अब उसी कहानी को जो आपने बात पहले कल भी क्वेश्चन किया था, एग्जीक्यूशन में जब काम हुआ तो दो चीजें निकली। एक तो डिलीवरेबल निकला, दूसरा वर्क परफॉर्मेंस डेटा निकला।
एक तीसरी चीज भी थी चेंज रिक्वेस्ट, अगर कोई वहां से डायरेक्ट हो सकती है तो वो भी निकली होगी। चेंज रिक्वेस्ट का तो सफर सिंपल है कि चेंज रिक्वेस्ट ने तो सीधा सीधा इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल के पास ही आना है, भले वो एग्जीक्यूशन से आ रही है या जहां से मर्जी आ रही है। और जो डिलीवरेबल है उसको भी देख लें। डिलीवरेबल के हवाले से मैंने ये कहा था कि ये कितने प्रोसेस हैं, अगर आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्रोसेस में से दो तो इंटीग्रेशन के ही हो गए ना, बाकी 9 प्रोसेस में से सिर्फ 2 प्रोसेस ऐसे हैं जो डिलीवरेबल के साथ बात करते हैं और किसी का डिलीवरेबल को टच करने की इजाजत नहीं है। जब डिलीवरेबल, भले वो पार्ट डिलीवरेबल हो या एंड डिलीवरेबल हो, कुछ भी चीज हो, जब कोई डिलीवरेबल आता है सबसे पहले उसकी क्वालिटी कंट्रोल होती है, और अगर क्वालिटी कंट्रोल पास हो जाए तो ये कहलाता है वेरीफाइड डिलीवरेबल। वेरीफाई हो गया जी, डिलीवरेबल वेरीफाई होगा, क्वालिटी में पास है। क्वालिटी से जो वेरीफाइड डिलीवरेबल निकलता है वो उसका आखिरी सफर जो है वो है टुवर्ड्स, ये जो स्कोप में ऊपर देखिए वैलिडेट स्कोप प्रोसेस है 5.5, ये यहां से निकल के वो वैलिडेट स्कोप में आता है, और वैलिडेट स्कोप वो आखिरी हतमी चेक है जो यूजर एक्सेप्टेंस करता है, जो उस प्रोडक्ट को या डिलीवरेबल को फाइनली वैलिडेट करता है। और अगर इस टेस्ट से भी वो चीज पास हो जाए, इस चेक, इस इंस्पेक्शन से भी ये चीज पास हो जाए, तो इसको कहते हैं एक्सेप्टेड डिलीवरेबल, एंड दिस देन गोज टू क्लोजिंग द प्रोजेक्ट, प्रोसेस ग्रुप में चली जाती है जहां से कस्टमर के हवाले कर दी जाती। तो जहां तक आपके डिलीवरेबल का ताल्लुक था तो उसका तो सिर्फ मैंने बता दिया कि ये कहानी है, क्वालिटी कंट्रोल के पास गया, वेरीफाई हुआ, वैलिडेट स्कोप के पास गया, यहां से एक्सेप्टेड बना और क्लोजिंग में चला, खत्म। जो चेंज रिक्वेस्ट एग्जीक्यूशन से आई थी वो सीधी सीधी इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल के पास आ गई, और फिर जो इसका फैसला होना है वो हो जाएगा। ज्यादा जो काम है वो है एनालिसिस का। वर्क परफॉर्मेंस डाटा, जो कि पता नहीं अच्छा है बुरा है, वट डाटा है, जो भी खबरें एग्जीक्यूशन में जनरेट हो रही हैं, काम हुआ नहीं हुआ, ठीक ठाक बाद में देखेंगे, ऑल दैट कम्स टू ईच वन ऑफ दीज कंट्रोल्स। ये जितने कंट्रोल इसके इर्द गिर्द पड़े हुए हैं, सवाए आप क्वालिटी कंट्रोल निकाल दें, बल्कि उसको भी आ जाते, उसको भी कॉपी आती है, और वैलिडेट्स को, ऑल विल गेट द वर्क परफॉर्मेंस डाटा, all will get the work performance data, and all will compare that work performance data with their relevant management plan, schedule वाला schedule management plan से, cost वाला cost management plan से, अपने अपने management plan से वो उसको compare करते हैं, जो काम हुआ है क्या प्लान के किस हद तक मुताबिक है, कहां कहां वेरिएंस है, कितना फर्क है, उससे कितना फर्क पड़ता है, क्या वाकई स्कोप, टाइम या कॉस्ट में कोई तब्दीली करने की जरूरत पड़ सकती है, अगर पड़ सकती है तो चेंज रिक्वेस्ट बनेगा, नहीं पड़ सकती तो चेंज रिक्वेस्ट के बगैर भी काम तब्दीली लाई जा सकती है। मतलब अगर से कि एक चीज है, इसकी यूं समझ लीजिए कि अथॉरिटी आपके अपने पास है कि भाई अगर स्कोप, टाइम और कॉस्ट का मसला नहीं है, अगर ये तीन चीजें बॉदर नहीं हो रही तो फिर इसका फैसला प्रोजेक्ट मैनेजर खुद ही कर सकता है विदाउट एनी चेंज रिक्वेस्ट, तो वो भी मुमकिन है। लेकिन एनीवेज, जो कुछ भी इन्होंने एनालिसिस किया, एनालिसिस करके इन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया वर्क परफॉर्मेंस डाटा को वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन में, और हर किसी ने कर दिया, और इन सब ने इसको भेज दिया इस चीफ एनालिस्ट के पास, मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क के पास, कि भाई ये सारा हमारे वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन है, आप ले लें। वर्क मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क ने यहां पर उस सारे को कंसोलिडेट किया और एक रिपोर्ट बना ली, उसको कहते हैं वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट। ये वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल को भी भेज दी जाती है, लेकिन इसका जो मेजर बेनिफिशियरी है वो है मैनेज प्रोजेक्ट टीम वाला, जो कि एग्जीक्यूशन में बैठा हुआ है। ये कामों की रिपोर्ट है, अच्छा या बुरा जैसा भी रिपोर्ट बनी है, ये रिपोर्ट उसको भेज दी जाएगी। ये उसका काम है ये जानना कि यार ये कौन से वाले काम में हमारे कौन से बंदे इन्वॉल्व थे, किसने अच्छा परफॉर्म किया, किसने बुरा परफॉर्म किया, किसको सजा देनी है, किसको जजा देनी है, जो भी कुछ करना है वो उनका सलूक जो रवा रखना है वो उसने रखना है। लेकिन हमने वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट उसको भेज दी। इसके अलावा मैंने ये कहा था कि ये एनालिसिस के नतीजे में हर कंट्रोल जो है वो चेंज रिक्वेस्ट निकाल सकता है। वो चेंज रिक्वेस्टें जो निकालेगा वो सारी की सारी एग्जीक्यूशन वाली भी और ये वाली भी, ये सब आएंगी इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल को। और जो मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क वाला है
ये क्योंकि चीफ एनालिस्ट है, सबकी रिपोर्टें इंफॉर्मेशन जिसके पास आई, इसने उनको रिपोर्ट बनाया, तो इसके दौरान शायद इसको महसूस हुआ हो कि कोई चेंज रिक्वेस्ट और भी बनती है जो किसी और ने नहीं की, तो ये भी मजाज है कि ये चेंज रिक्वेस्ट कर सके, लेकिन पाथ वही है, इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल को बताना पड़ेगा। और अल्टीमेटली वो चेंज रिक्वेस्ट फिर अगर अप्रूव हो जाए तो लाजमी बात है कि वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स को अमेंड कर देती है, एग्जीक्यूशन को बता दिया जाता है कि अब के बाद वाला जो काम है वो तुम इसके मुताबिक। तो ये है जी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क। और इसके बाद आखिर में आ जाती है क्लोजिंग प्रोसेस ग्रुप, जिसमें टोटल 2 प्रोसेसेस हैं। जो मेन प्रोसेस, जो बड़ी प्रोसेस है इंटीग्रेशन वाली है, उसका नाम है क्लोज प्रोजेक्ट और फेज, क्योंकि हर प्रोजेक्ट और हर फेज को हमें क्लोज करना पड़ता है, और हर प्रोजेक्ट और हर फेज का वो भी होता है, चार्टर भी होता है। तो यहाँ पे जब हम इसे क्लोज करते हैं प्रोजेक्ट इंटीग्रेशन मैनेजमेंट में, यहाँ हम ये इंश्योर करते हैं, वो चंद सवाल जो मैंने आपको पहले बताए थे, आया कि सब काम हो गए हैं, आया कि सब चीजें मुकम्मल हो गई हैं, डिलीवर हो गई हैं, जो डिलीवरेबल्स हैं वो तैयार हैं, और कोई चीज आउटस्टैंडिंग तो नहीं। ये प्रोक्योरमेंट वाला चेक करता है कि सारे ठेके क्लोज हो गए, उनकी पेमेंट्स हो गई हैं, क्लेम्स दाखिल हो गए हैं, कोई चीज आउटस्टैंडिंग रह नहीं गई है, तो उसके बाद वो इसको रिपोर्ट कर देता है इंटीग्रेशन वाले को। इंटीग्रेशन वाला कहता है जी अच्छा, इफ एवरीथिंग इज ओके देन आई विल, ये 2 काम करेगा, एक तो जो डिलीवरेबल है वो कस्टमर के हवाले करेगा, एंड एवरीथिंग एल्स इज सबमिटेड टू ऑर्गेनाइजेशन एज ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स, एंड दिस क्लोजेस दिस सब्जेक्ट, कि ये जनाब आपकी क्लोजिंग हो गई। ये जो बात हम अभी प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन के हवाले से कर रहे थे, ये आपको इस स्लाइड में नजर आएगी, बल्कि ये डायग्राम में अगले में आप देखेंगे। ये इसने बाकायदा तौर पे पीएमबीओ के अंदर बाकायदा तौर पे वर्क परफॉर्मेंस डेटा क्या होता है, वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन क्या होती है, वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट क्या होती है, ये बाकायदा डेफिनेशन इसकी पूरी अंग्रेजी लिखी हुई है। जो बात मैंने आपको समझाई है एग्जैक्टली वही बात है, मगर ये यहाँ पे मुकम्मल तफसील के साथ दी हुई है। इसके अलावा इन्होंने ये वाला डायग्राम भी यहाँ पे दिया हुआ है, जिसमें जेनरिकली वो बता रहा है कि ये कैसे प्रोसेस होता है। कहता है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, ऊपर वाला बॉक्स देखिए, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन से वर्क परफॉर्मेंस डाटा निकला। यहाँ पे अलग अलग कंट्रोल दिखाने के बजाय उसने कहा जी कंट्रोलिंग प्रोसेस, सारे कंट्रोल अपनी अपनी जगह पे ये रिसीव करते हैं और इसको कन्वर्ट कर देते हैं वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन में। फिर वो ओवरऑल प्रोजेक्ट कंट्रोल के पास जाता है, जिसको क्या नाम था, मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क, वो इसको रिपोर्ट में कन्वर्ट कर देता है। ऐसे ही हुआ था ना, डेटा, इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट के ऊपर जो एक्शन है वो इंटरेस्टिंग है। ऐसा मुमकिन है अगर तो स्कोप, टाइम या कॉस्ट पे असर पड़ रहा है, अगर स्कोप, टाइम या कॉस्ट पे असर पड़ रहा है तो हमें प्रॉपर परमिशन लेने की जरूरत है। ऐसे ही है ना जी। तो वो प्रॉपर चेंज कंट्रोल के प्रोसीजर से जाएगा, चेंज रिक्वेस्ट लॉन्च होगी, उसके ऊपर परमिशन मिलेगी, और चेंज रिक्वेस्ट अप्रूव होने के बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अमेंड होंगे, और उसके मुताबिक एग्जीक्यूशन को कम्युनिकेट कर दिया जाएगा, प्रोजेक्ट टीम्स को, स्टेक होल्डर को, सबको बता दिया जाएगा कि अब प्लान में ये तब्दीली लाई जा चुकी है। ये मैं आ रहा हूं, ये चेंज कंट्रोल वाले, प्रोजेक्ट चेंज कंट्रोल वाला उस तरफ से ये एरो, एक मिनट में देखूं आपको, एक्चुअली हमारे पास वो स्क्रीन नजर भी तो देर से आती है ना। मैं इस जगह पे हूं, अगर आपको ये नजर आ रहा है, हाँ ये नजर आ रहा है ना आपको, ये है, मैंने जब वर्क परफॉर्मेंस, मैंने चेंज रिक्वेस्ट यहाँ की है, यहाँ अगर चेंज कंट्रोल बनता है, यहाँ मैंने जज किया कि स्कोप या टाइम या कॉस्ट पे कोई इफेक्ट पड़ रहा है, अगर है तो चेंज रिक्वेस्ट मूव की, उसकी वजह से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बदला, और अगर बदला तो ये अपडेट कर दिया मैंने एग्जीक्यूशन को और कम्युनिकेट कर दिया बाकी सब लोगों को। फिर आप दूसरा देखें, अगर वर्क स्कोप, टाइम, कॉस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो क्या करूंगा, तो मैं डायरेक्टली कर दूंगा ना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में अगर कोई चेंज करनी है तो डायरेक्टली तब्दील कर दूंगा और कम्युनिकेट कर दूंगा, मतलब मुझे उसको अप्रूवल प्रोसेस से नहीं गुजारना पड़ेगा। और अगर कुछ चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ कम्युनिकेट करने की जरूरत है कि जरा लोगों को ये हिदायत दे दो कि यार काम ठीक से किया करें, तो प्रोजेक्ट डायरेक्टली कम्युनिकेट कर दें आप, ये वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट आप कम्युनिकेट कर देते हैं रेलिवेंट लोगों को, और इस तरीके से ये आपका पूरा प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन का मैकेनिज्म ये बन गया। जी जनाब, यहां तक की बातचीत के ऊपर कोई क्वेश्चन आंसर तो नहीं है?
जनाब No, sir. अच्छा जी, मैं इंटीग्रेशन की तरफ जाता हूं। मैं कुछ और बातें भी करूंगा, लेकिन मैं इंटीग्रेशन पे जो इससे मैं जोड़ना चाह रहा था चीज, मैं उसकी तरफ जाता हूं। इंटीग्रेशन में एक मिनट आपको ये स्क्रीन पे आ जाए जरा। इंटीग्रेशन का जो नॉलेज एरिया मैं उसकी बात कर रहा हूं। इंटीग्रेशन के नॉलेज एरिया में बुनियादी तौर पे कितने प्रोसेस हैं, आपका क्या ख्याल है? इंटीग्रेशन हैज टू बी एवरीवेयर, तो 5 तो प्रोसेस ग्रुप हैं ही हैं, हर एक पे इसकी प्रेजेंस जरूरी है। लेकिन आपको पता, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में एक नहीं 2 प्रोसेस हैं। इसका मतलब है टोटल इसके 6 प्रोसेस बनते हैं। ये हैं इसके 6 प्रोसेस। इनिशिएशन में हमने डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर किया था, प्लानिंग में हमने डेवलप प्रोजेक्ट मैनेज प्लान किया था, एग्जीक्यूशन में हमने डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क किया था, और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में हमने 2 काम किए थे, चीफ एनालिस्ट और चीफ कंट्रोलर वाला। मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क किया था और परफॉर्म इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल की थी, और आखिर में हम क्लोज प्रोजेक्ट और फेज जो है, ये क्लोजिंग में हमारा इंटीग्रेशन का प्रोसेस। अच्छा जी, डेवलप प्रोजेक्ट चार्टर जो है, उसमें मुझे क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं इनपुट में। अगर आप देखें, ये सारे इनपुट्स, सारे आउटपुट्स और सारे टूल्स यहां पे दिखाए गए। टूल्स के अलावा ऐसी कौन सी चीज है जो आपके लिए नई हो? क्या आप इन इनपुट्स को देख के ये बता सकते हैं कि ये कहां से आया और क्यों आया? जी भाई, क्लियर है ना? ये 3 चीजें जो ऊपर लिखी हुई हैं इनपुट के अंदर, ये तो स्पॉन्सर अपने साथ लेके आया था। प्रोजेक्ट स्टेटमेंट ऑफ वर्क, बिजनेस केस और एग्रीमेंट। जी सर। और ये नीचे जो 2 चीजें लिखी हैं, एंटरप्राइज नॉन फैक्टर ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट, ये आपको पता है हर जगह इनपुट होती हैं। ये आपको कहां से मिलती हैं? अपनी ऑर्गेनाइजेशन से। तो कोई भी आप अजनबी नहीं है इन किसी भी काम से, ये आप डिस्कस कर चुके हैं। ये चीजें कहां से आती हैं ये हमें पता है, और जी इससे सर। निकलता क्या है, प्रोजेक्ट चार्टर निकलता है, ये भी हमें पता है। द ओनली थिंग लेफ्ट हेयर टू अंडरस्टैंड इज ये कैसे निकलता है, व्हाट आर द टूल्स एंड टेक्निक्स यू यूज। तो ये कौन बना रहा है? ये स्पॉन्सर बना रहा है। वो अपनी एक्सपर्ट जजमेंट इस्तेमाल करता है। हम उसकी उसकी सवाबदीद पे ये छोड़ दें कि वो कैसे कैसे बनाता है, लेकिन एक्सपर्ट जजमेंट का मतलब सिर्फ उसकी अपनी जाती सवाबदीद नहीं है। अगर वो किसी से मशवरा लेना चाहे तो वो मशवरा ले सकता है। वो जिसको प्रोजेक्ट मैनेजर बनाना चाहता है उसको साथ बिठा ले, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट को बिठा ले, किसी कंसल्टेंट को बिठा ले, किसी और एक्सपीरियंस बंदे को बुला ले साथ, उसकी राय शामिल कर ले, जैसे चाहे वो कर ले। लेकिन जो डॉक्यूमेंट बनेगा प्रोजेक्ट चार्टर, वो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर की तरफ से बनेगा, उसके सिग्नेचर से बनेगा। मतलब ये अक्सर ये कंफ्यूजन होती है ऑर्गेनाइजेशन में कि जी ये प्रोजेक्ट चार्टर प्रोजेक्ट मैनेजर बनाता है, तो मैं इससे एग्री नहीं करता। अगर वो इनफॉर्मली बनाता भी है तो वो उसकी हेल्प करने के लिए बनाता है। दरअसल इस डॉक्यूमेंट का ऑथर और ओनर जो है, वो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर ही रहता है। और उसकी जुबान, अगर उसे अंग्रेजी लिखनी नहीं आती तो मैं उसे अंग्रेजी लिख के दे रहा हूँ। जैसे वो पुराने जमाने में खत लिखने वाला नहीं होता था, आप उसे डिक्टेट करते जाते थे, वो लिखता जाता था। तो मेरा वो रोल है, अगर प्रोजेक्ट मैनेजर को कहा जा रहा है कि भाई तुम्हें मैं प्रोजेक्ट मैनेजर लगा रहा हूँ, तो ये जरा लिखो ना चार्टर, तो वो फिर जो कहेगा मैं उसके मुताबिक लिखूंगा, लेकिन वो उसकी तरफ से लिखा जाएगा, क्योंकि ये हुक्मनामा है। मैं अपने लिए खुद से हुक्मनामा तो नहीं लिख सकता, मैं उस बंदे की जुबान ही इस्तेमाल करूंगा। इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट चार्टर वैसे तो स्पॉन्सर का लिखना उसकी जिम्मेदारी है, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजर की अगर कोई इन्वॉल्वमेंट हो तो हो, ऑप्शनली हो तो सकती है, लेकिन ऑथरशिप कभी भी प्रोजेक्ट मैनेजर की नहीं होगी। उसके बाद इसमें फैसिलिटेशन टेक्निक्स इस्तेमाल करता है स्पॉन्सर, जिसमें लोगों से मशवरे भी लिए जा सकते हैं, और लोगों से कुछ और देखा जा सकता है, कोई मीटिंग की जा सकती हैं, कुछ और तरीकेकार किए जा सकते हैं, जिससे वो इन दोनों चीजों से वो बुनियादी तौर पे जो फायदा लेना चाहता है वो ये है कि प्रोजेक्ट चार्टर बनाना चाह रहा है। अच्छा जी, अब इसको एक तो ये वाला चार्ट था ना जी, ये इनपुट टूल टेक्निक्स वाला। इसके अलावा ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चार्ट है कि इसमें आपको ये एग्जैक्टली पता चलता है क्या इन हो रहा है, क्या आउट हो रहा है, टूल्स क्या चाहिए। और इसके बाद ये जो अगला डायग्राम है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हर प्रोसेस के लिए होगा। 47 प्रोसेस है, 47 की 47 प्रोसेस की ये दोनों शक्लें आपको
समझ आनी चाहिए, रट्टा ना लगाइएगा, समझ आनी चाहिए कि हो क्या रहा है। अब ये देखिए कि यहाँ पे इनपुट्स की तरफ से दिखाया जा रहा है। अब इसका कन्वेंशन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जिस प्रोसेस को डिस्कस किया जा रहा हो, एक मिनट में जरा, जिस प्रोसेस को डिस्कस किया जा रहा हो उसको ये जो बीच में डार्कन बैकग्राउंड है, ये उस प्रोसेस का नॉलेज एरिया शो करता है। उसके अंदर ये ग्रे बॉक्स के अंदर जो प्रोसेसेस दिखाई जाएं, दिस इज द प्रोसेस अंडर डिस्कशन। जो व्हाइट बॉक्स में दिखाई जा रही हैं, इसी बैकग्राउंड के ऊपर व्हाइट बॉक्स में दिखाई जा रही हैं, these processes relate to integration but they are not under discussion। तो उनके साथ इसका क्या ताल्लुक है, ये जो डेवलप चार्टर वाला प्रोसेस हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, वो इंटीग्रेशन में दूसरे रिश्तेदार को क्या दे रहा है, और इसके अलावा वो इसके बाहर, मतलब अपने इंटीग्रेशन के नॉलेज एरिया के बाहर दूसरे नॉलेज एरियाज को क्या क्या दे रहा है और किस किस को दे रहा है। अच्छा, अब चूंकि चार्टर एक ऐसी चीज है कि पहला डॉक्यूमेंट है, पहली चीज ये बन रही है, तो लाजमी बात है कि इस पहली चीज ने ही सारी चीजों को इग्नाइट करना है, शुरू करना है। तो इनपुट्स के हवाले से तो आप बड़े क्लियर होंगे कि ये 3 चीजें तो स्पॉन्सर लाया था और ये 2 चीजें तो ऑर्गेनाइज आई थी, लेकिन हमने सीधा सीधा पिछले डायग्राम में ये कह दिया कि जी चार्टर निकलता है। और भाई चार्टर निकलता है तो जाता कहाँ है, किसको जरूरत है चार्टर की? लाजमी बात है कि एक हद तक जरूरत रहेगी, उसके बाद और डॉक्यूमेंट्स ऐसे बन जाएंगे जिनकी बेस पे फर्दर प्लानिंग हो सकती है, तो चार्टर विल नो मोर बी रिक्वायर्ड। तो चार्टर की जरूरत आप यहाँ देखिए स्कोप मैनेजमेंट करने के लिए चाहिए, मतलब स्कोप मैनेजमेंट प्लान और रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान इधर बनता है ना, जब वो बन रहा हो तो मुझे चार्टर चाहिए। जब रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट की जा रही हो तब मुझे चार्टर चाहिए। जब डिफाइन किया जा रहा हो स्कोप तब मुझे चार्टर चाहिए, क्योंकि ये स्कोप को ज्यादा इसलिए चाहिए कि स्कोप से पीछे कोई चीज ही नहीं थी। जब टाइम आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा, उनको तो फिर इसके बाद जो काम होने हैं उनकी हिदायत तो स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान में पड़ी हुई है, उनको तो चार्टर की जरूरत नहीं है, उनकी गाड़ी को धक्का लग गया हुआ है। लेकिन क्योंकि स्कोप जब तक स्टैब्लिश नहीं होता तब तक हम कोई और काम नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि स्कोप में बहुत कदम कदम फूंक फूंक के लेना पड़ रहा है, और हर कदम पे मुझे चार्टर की सपोर्ट लेनी पड़ रही है, मुझे सहारा लेना पड़ रहा है, इसको पकड़ के मैं आगे चल रहा हूँ। तो स्कोप मैनेजमेंट प्लान बनाते हुए भी चार्टर चाहिए, कलेक्ट रिक्वायरमेंट करते हुए भी चार्टर चाहिए, और स्कोप डिफाइन, ये डिफाइन स्कोप में एक चीज बनती है जिसे कहते हैं स्कोप स्टेटमेंट, एंड दिस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव शेप ऑफ द स्कोप, मोस्ट डिस्क्रिप्टिव। इससे ज्यादा डिस्क्रिप्टिव किसी प्रोजेक्ट में स्कोप नहीं होता। होता है तो वैसे चार्टर में भी स्कोप होता है, वो तो बिजनेस केस में भी स्कोप होता है, लेकिन जितना डिस्क्रिप्टिव और डिटेल्ड स्कोप आपको यहाँ डिफाइन स्कोप से निकलता है वो प्रोजेक्ट मैनेजर ही बनाता है, और उससे ज्यादा तफसील और कोई नहीं बना सकता। एनीवेज, ये तो 3 चीजें हो गई ऊपर वाली स्कोप को जो जा रही हैं। फिर टाइम स्केड्यूल मैनेजमेंट प्लान जहां बन रहा है उसको चार्टर चाहिए, उसके बाद वो संभाल लेगा। कॉस्ट को चार्टर चाहिए, उसके बाद वो भी संभाल लेगी। और रिस्क को भी चाहिए, क्योंकि रिस्क एक ऐसी चीज है जिसने सारे प्रोजेक्ट के रिस्कों को देखना है, तो अगर वो चार्टर को मद्देनजर रख के सारे प्रोजेक्ट के रिस्कों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है तो उसके लिए फायदेमंद होगा। और लाजमी बात है कि आपको याद होगा कि इनिशिएशन के अंदर चार्टर के अलावा दूसरा प्रोसेस यही था, आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स। तो आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स तो हमें पता है कि चार्टर के बाद काम ही ये करना है इमीडिएटली, और उस वक्त और कोई चीज अवेलेबल ही नहीं है प्रोजेक्ट चार्टर के, तो प्रोजेक्ट चार्टर इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टेक होल्डर्स। तो मेरे कहने का मकसद है कि ये जो डायग्राम जो आप देखते हैं, डू नॉट बी कंफ्यूज बाय द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द थिंग्स, कितने एरो जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, आपको ये बात नजर आ रही है। रूल मैंने आपको बता दिया, काली लाइन जो है वो अपने रिश्तेदार से बात करने के लिए, जो ग्रे लाइन है वो बाहर के लोगों से बात करने के लिए, ये जो डब्बा बना हुआ है बैकग्राउंड में बड़े वाला, ये जिस नॉलेज एरिया से इसका ताल्लुक है ये इसको रिप्रेजेंट करता है, और बाकी चीजें जो हैं, बाकी नॉलेज एरियाज के जो बाकी प्रोसेस हैं, उनके डब्बे नहीं बनाए हुए, उनको बस बाहर रखा हुआ है, इस डब्बे से बाहर रखा है। और इस डब्बे के अंदर जो दूसरे बॉक्सेस दिखाए जा रहे हैं वो हमारे अपने रिश्तेदार हैं, मतलब इंटीग्रेशन के किसी और प्रोसेस को अगर चार्टर मिल रहा है तो वो कौन है, वो है डेवलप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। राइट जी, ये डेवलप चार्टर था, और मैं जरा थोड़ी चीजें स्किप करूंगा, मैं सिर्फ ये मैं बाद में डिस्क्राइब करता हूं।
I just want to jump to the next process. ओके, जब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान डेवलप करने लगते हैं तो लाजमी बात है कि चार्टर मेरे पास मौजूद है और अब मैं प्लानिंग में दाखिल होने लगा हूं और वहां पे मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान डेवलप कर रहा हूं। ये आपके सामने आ गया होगा। यहां पे चार्टर मुझे इनपुट में मिल रहा है। इनपुट में आप देखें पहली चीज चार्टर है और हमने उधर भी कहा था कि चार्टर डेवलप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को जाता है। इसके अलावा एंटरप्राइज फैक्टर और प्रोसेस एसेट भी जाते हैं, ये भी हमें क्लियर है। एक यहां पे चीज देखिए, आउटपुट फ्रॉम अदर प्रोसेसेस। नाउ बजाय इसके कि वो ये कहता कि जो सारे मैनेजमेंट प्लान्स हैं, जो सारे नॉलेज एरियाज हैं, उन सब से मैनेजमेंट प्लान लेके आओ और इतने सारे इनपुट्स आ रहे होते, उसने यहाँ पे एक लफ्ज लिख के बात मुका दी। उसने कहा आउटपुट फ्रॉम अदर प्रोसेस, जो जो मुझे मिलना है वो मुझे यहां से दे दो। टूल्स वही है, एक्सपर्ट जजमेंट और फैसिलिटेशन टेक्निक्स, और इसने एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान डेवलप करना है। अगर आप देखें तो क्लासिकली स्पीकिंग दिस इज नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स, दिस इज वेरी सिंपल। बट इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे और इसकी इनपुट को देखेंगे तो आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं कि इतनी सारी जगहों से इनपुट आ रही है और इतनी सारी चीजों को आउटपुट जा रही है, इसको कौन याद रखेगा? तो मैं आपको बताता हूं, इसको कोई भी याद नहीं रखेगा, इसको याद रखने की जरूरत ही नहीं है। अभी तो इसने सारे बॉक्स दिखाए नहीं है, अगर ये सारे बॉक्स दिखाना शुरू करे तो ये कहां से ये आउटपुट्स आ रही हैं अदर प्रोसेसेस की, उनके अगर डब्बे बनाने जाएं तो ये और भी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बात सिर्फ इतनी सी याद रखने वाली है कि ये जो बैकग्राउंड वाला डब्बा है, ये तो इंटीग्रेशन के प्रोसेस। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बनाने के लिए मुझे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस और एंटरप्राइज नॉन फैक्टर आ रहे हैं, फाइन, वी नो इट। फिर हमें जो चार्टर है वो प्रोजेक्ट चार्टर की तरफ से आ रहा है, और प्रोजेक्ट चार्टर इज नॉट अंडर डिस्कशन बट द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान इज अंडर डिस्कशन। यहां इसको जो इनपुट्स मिल रही हैं वो अदर एरियाज से आ रही हैं। ये वो तमाम आप अगर चेक कर लें, ये 11 ही होंगे, 11 और क्या कहते हैं 3 13 11 12 13 14। कम्युनिकेशन है, कॉस्ट है, ह्यूमन रिसोर्स है, प्रोक्योरमेंट है, प्रोसेस इंप्रूवमेंट है, क्वालिटी है, रिक्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान भी है, रिस्क है, ये सब कुछ कॉस्ट बेस्ड है, स्केड्यूल बेस्ड है, स्कोप बेस्ड है। आप गिन लीजिए, ये वो 14 इनपुट्स इसके अंदर जा रही हैं। दीज आर दोज थिंग्स जिसको मिल के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान बनता है। और जब बन जाता है फिर जाता कहां है, इसमें भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कौन बेवकूफ ये याद रखे कि ये ना इसको जाता है उसको नहीं जाता, ये सबको जाता है। आंखें बंद करके आप फैसला कर दें, इट गोज टू एवरीवेयर। प्लानिंग के सारे प्रोसेस को भी जा रहा है, अब देखें प्लान स्कोप मैनेजमेंट को भी जा रहा है, कंट्रोल स्कोप को भी जा रहा है, प्लान स्केड्यूल में हर किसी को जा रहा है जनाब। इसमें आप अपना वक्त जाया ही ना करें। आप बस ये कह दें कि यहां से प्रोजेक्ट प्लान निकला और हर किसी को रिक्वायर्ड है, प्लानिंग में भी रिक्वायर्ड है, एग्जीक्यूशन में भी रिक्वायर्ड है, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, क्लोजिंग में, सब जगह रिक्वायर्ड है, सिर्फ इनिशिएशन में नहीं रिक्वायर्ड, और ये अपने आप को नहीं रिक्वायर्ड। ठीक है जी, आगे आने वाली सब चीजों को ये रिक्वायर्ड। तो इस कंफ्यूजन से भी मैंने आपको निकाल दिया। इसके बाद जनाब अगला जो प्रोसेस है ये वाला है जी, डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क। ये है जब आप एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। एग्जीक्यूशन में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान इनपुट हुआ, एग्जीक्यूशन की बात हो रही है जी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान आपको पता ही है कि वो तो आने ही आने हैं, मतलब प्लानिंग में हर जगह पे आना है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान। अप्रूव्ड चेंज रिक्वेस्ट, ये मुझे कोई बता सकेगा कि ये क्या भला है और कहां से आ गई? यहां पर अप्रूव्ड चेंज रिक्वेस्ट, ये कहां से आई है? सर ये वहां से आई थी ना, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के बाद जब हमने वो किया था, अगर चेंज थी तो चेंज का वो दोबारा से गया और इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल से होके आई। बिल्कुल सही है कि इसका ताल्लुक है आगे वाले मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के साथ। जो जो चेंज रिक्वेस्टें कहीं से भी हुई होंगी, जो कोई अप्रूव होगी उसकी मैंने कहा था इंटीमेशन आती है एग्जीक्यूशन को, ये आ रही है वो जहां पे अप्रूव चेंज रिक्वेस्ट आ रही है। इसके अलावा ये दो चीजों से तो हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, एंटरप्राइज नॉन प्रोसेस तो आने आने। यहां पे टूल्स एंड टेक्निक में जरा सा फर्क है। उसने एक्सपर्ट जजमेंट तो वही रखा, उसने कहा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसकी क्या जरूरत है और ये क्या चीज है?
अगर आप लोग थोड़ा सा समझते हैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, कोई भी मैनेजमेंट का मैकेनिज्म है, उसके अंदर उसको एफिशिएंसी से चलाने के लिए, उसको मोर इफेक्टिवली चलाने के लिए हम नॉर्मली ऑटोमेटेड सिस्टम्स, कंप्यूटर्स या ऐसी कोई चीजें इस्तेमाल करते हैं, या यूं कह लीजिए सिंप्लीफाइड सिस्टम, जिससे आपका मैनुअली होने वाला काम किसी तरह से आसान हो सके। तो अगर हम कोई ऐसा ऑटोमेटेड टूल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल करें जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सारे कामों में हमारी मदद कर सके, मतलब उसमें सिर्फ स्केड्यूलिंग ही नहीं है, स्केड्यूलिंग के लिए तो बड़े सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, एमएस प्रोजेक्ट है, प्राइमरी है, ये है वो है, लेकिन और भी तो बहुत से इंतजाम आते हैं, कागजात का हिसाब किताब है, फाइलें किधर जा रही हैं, लोग किधर जा रहे हैं, उनकी मैनेजमेंट कैसे हो रही है, तो बहुत सी, अगर पूरा सिस्टम हो उसको कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम। इंटीग्रेशन के लेवल पे हमें इस तरह का कोई सिस्टम चाहिए जिससे हम काम के ऊपर, मतलब कम्युनिकेशन, ये वो सब चीजों पे नजर रख सके। अब जैसे ये जो ना ऑटोमेटेड सिस्टम बन गए ना, मैं आपके साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, मैं वो जो आपको रिमाइंडर आता है रोजाना, वो मैं तो नहीं भेजता, वो ऑटोमेटेड है, उसको फिक्स किया हुआ है कि जी इतने घंटे पहले रोज भेज दो, वो खुद ही भेज देता है। तो इसका क्या मतलब है कि वो खुद ब खुद, वरना वो जो कम्युनिकेशन वाली बात हमने की थी कि मुझे आपको फोन करके बताना पड़ता है कि यार आपको याद है कि मतलब आज क्लास है इतने बजे तो आ जाना, तो मतलब वो करने के बजाय वो ऑटोमेटेड होती चीजें। तो ये जो ऑटोमेटेड टूल्स हैं, इनका इस्तेमाल करके अगर हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को बेहतर बना सकें, और बनाना चाहिए, तो वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है। और मीटिंग्स तो आपको पता ही है कि वो आप अपने ग्रुप के साथ, अपनी टीम के साथ बैठ के मीटिंग करके कोऑर्डिनेट करते हैं कि काम को करने के हवाले से आप ये नतीजे में जो चीजें बाहर निकलती हैं इससे, डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क से, आपको याद होगा, डिलीवरेबल निकलेगा, वर्क परफॉर्मेंस डेटा निकलेगा, चेंज रिक्वेस्ट निकलेगी, तीन चीजें। इसकी कहानी हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। चेंज रिक्वेस्ट यहां से निकल के कहां जाएगी? चेंज रिक्वेस्ट जाएगी इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल के पास। वर्क परफॉर्मेंस डाटा यहां से निकल के कहां जाएगा? मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल के सारे कंट्रोलों के पास। वो उसके साथ फिर जो भी गेम खेलते हैं उसको इन्फॉर्मेशन बनाते हैं, और फिर वो आगे जाके रिपोर्ट बनती है, जो कुछ भी करेगा वो उसका काम है। डिलीवरेबल्स यहां से जाएंगी मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल में, क्वालिटी कंट्रोल को पहले टकराएंगी, वहां से वेरीफाई होंगी, और उसके बाद उसको वैलिडेशन होगी, वहां से आगे। तो ये कहानी तो क्लियर है। अगर आपको लॉजिक समझ आया हुआ है, जो हम कई बार अब तक रिपीट भी कर चुके हैं, तो अब आपके लिए मसले वाली बात नहीं है इस बात को एंटिसिपेट करना, कि मैं इसीलिए आपको सिर्फ ये प्रोसेसेस दिखा रहा हूँ, 6 प्रोसेस, ताकि कम से कम हम इस फ्लो में आ जाएं, और बाकी जो बाकी अंग्रेजियां और तफसीलात हैं वो हम कल भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन कम से कम मैं इसमें से आपको जरूर गुजारना चाहता हूँ। ओके, इस डायग्राम को देखिएगा जी, ये है इस डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क से क्या क्या चीजें आ रही हैं, कहां जा रही हैं। डोंट बी कंफ्यूज बाय द डायग्राम, दिस डायग्राम इज एक्चुअली शोइंग द सेम थिंग जो पिछले वाले टेबल में हम देख चुके हैं। इनपुट्स क्या है देख लीजिए, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एंटरप्राइज एनवायरनमेंट फैक्टर आया था, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान इसको आया था, चेंज रिक्वेस्ट अप्रूव हुई इसको आई थी, ये 4 चीजें आई थी ना, और तो कोई चीज नहीं आई। ये देता क्या है? ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को अपडेट करके वापस करता है। ये यहां से चेंज रिक्वेस्ट जो करता है वो इंटीग्रेटेड के पास जाती है। इसके बाद वर्क परफॉर्मेंस डेटा जो यहां से निकलता है किस किस को जाता है, ये देखें आप जरा, सारे कंट्रोल लिखे हुए, ये सारे कंट्रोल हैं जिनको ये जाता है। और इसके अलावा डिलीवरेबल जो है वो सिर्फ क्वालिटी कंट्रोल को जा रहा है। तो ये चीज आपको बड़ी वाजे तौर पे यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि ये कैसे फ्लो चल रहा है और कैसे चीजें जा रही। फिर मैं आ जाऊं इसके ऊपर डायरेक्ट एंड मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क की तरफ। तो मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क में आप देखें, ये है चीफ एनालिस्ट वाला काम करता है। यहां थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आपको नजर आएगी कि चीजें ज्यादा हो गई हैं, लेकिन दरअसल हो क्या रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान तो मुझे इनपुट में मिल ही रहा है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान तो मुझे इनपुट में मिल ही रहा है। यहाँ पे उसने 2 किस्म की फोरकास्ट मांगी है। आपको पता ही है कि जो स्केड्यूल और कॉस्ट है, वो जब अपनी वेरिएंस निकालेंगे, जब अपना वो एनालिसिस वगैरह करेंगे, तो उधर सिर्फ वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, उसने वर्क परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन के साथ और भी बड़ा कुछ करना है। ये 2 चीजें जो है, स्केड्यूल की वेरिएंस, कॉस्ट की वेरिएंस, इसका परफॉर्मेंस इंडेक्स, इसका ट्रेंड एनालिसिस, इसका फिर प्रोजेक्शंस, इसका फिर फोरकास्ट, ये सारा काम होता है। और हम फिर उससे एक फोरकास्ट कैलकुलेट करते हैं कि अगर ये जो गलती हो गई है, अब हमारा प्रोजेक्ट इस तारीख को नहीं बल्कि इस तारीख को खत्म होगा,
अब हमारे प्रोजेक्ट पे इतने नहीं बल्कि इतने पैसे खर्च होंगे। ये फोरकास्ट जो है ये सिर्फ स्केड्यूल और कॉस्ट से आते हैं मॉनिटर एंड कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क को। बाकी सब जगहों से वर्क परफॉर्मेंस इन्फॉर्मेशन तो एनीवेज आ ही रही है। एक चीज यहाँ पे इनपुट हुई है वैलिडेटेड चेंजेस। ये आप अभी देखेंगे कि वैलिडेटेड चेंजेस कहां से होके आ रही हैं। जब कोई चेंज एक्सेप्ट हो क्या अप्रूव हो जाती है तो उसको हम क्वालिटी कंट्रोल के पास भेजते हैं कि वो उस चेंज को देख ले कि इसके मुताबिक वो उसको वैलिडेट कर दे कि भाई अब इसके मुताबिक काम होगा। एंटरप्राइज नॉमिनल फैक्टर और प्रोसेस एसेट्स हमें चाहिए होते हैं। टूल्स में देखिएगा एक्सपर्ट जजमेंट चाहिए। यहां हमें एनालिटिकल टेक्निक भी चाहिए क्योंकि वो देखें आप जरा अंदाजा कीजिए कि कितने सारे कंट्रोल्स हैं। सब ने अपने अपनी, किसी ने हथौड़ी पकड़ी है, किसी ने आरी पकड़ी, किसी ने जंबूर पकड़ा हुआ है, सब अपने अपने तरीके से एनालाइज कर रहे हैं। यहाँ पे इसको उन तमाम की टेक्निक्स आनी चाहिए ताकि ये उनको असेस कर सके और कंसोलिडेट कर सके। तो एनालिटिकल टेक्निक्स में वो तमाम टेक्निक्स का यहाँ पे होना जरूरी है। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और मीटिंग जैसे हम पहले देख चुके हैं। नतीजे में ये जो प्रोसेस है उसकी कंसोलिडेशन से वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट तो निकालेगा ही निकालेगा, चेंज रिक्वेस्ट भी निकाल सकता है और जिसके नतीजे में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान अपडेट होगा और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट अपडेट होगा। अब आप कहेंगे भाई अभी तो चेंज रिक्वेस्ट निकाली है, ये अपडेट कैसे हो गया? आपको मैंने अभी एक बात बताई, चेंज रिक्वेस्ट के नतीजे में अगर अपडेट होना है तो उसके लिए तो अप्रूवल चाहिए। अगर चेंज रिक्वेस्ट रिक्वायर्ड ही नहीं है, इफ देयर इज नो चेंज इन स्कोप, टाइम एंड कॉस्ट, तो प्रोजेक्ट मैनेजर की अपनी स्वाबदीद है, वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान को और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स को डायरेक्टली अपडेट कर सकता है। अगर स्कोप में, टाइम में और कॉस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर खुद से करेक्शन कर सकता है प्रोजेक्ट प्लान में और डॉक्यूमेंट्स में। और अगर इनमें भी चेंज करने की जरूरत नहीं है तो वो डायरेक्टली कम्युनिकेट भी कर सकता है अपनी टीम के साथ कि मेहनत से काम किया करो, फलानी चीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दो, तो वो उस किस्म की हिदायत जो है वो डायरेक्टली कम्युनिकेट भी कर सकता है। अच्छा जी, इससे जो इसका वो बनता है ये अगेन यू सी कुछ कॉम्प्लिकेटेड सी शक्ल बनेगी। अभी आगे आगे आ रहा है आपके सामने। ये थोड़ा अगेन लुक्स लाइक कॉम्प्लिकेटेड, मगर इफ यू गो इनटू द डिटेल तो इतना कोई मुश्किल नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है जी कि ये सारे वो कंट्रोल्स की लिस्ट है। ये सारे वैलिडेट स्कोप कंट्रोल्स को, कंट्रोल कम्युनिकेशन कंट्रोल, रिस्क कंट्रोल, प्रोक्योरमेंट कंट्रोल, स्टेक होल्डर, इन सब ने अपने अपने डाटा को कन्वर्ट करके इंफॉर्मेशन बना के इसे भेज दिया। ये जो कंट्रोल स्केड्यूल और कंट्रोल कॉस्ट है भेजा तो इन्होंने भी है, लेकिन इन्होंने साथ स्केड्यूल फोरकास्ट और कॉस्ट फोरकास्ट भी भेजा। और क्वालिटी कंट्रोल ने वो जो अप्रूव्ड चेंज रिक्वेस्टें इसको मिली होंगी उनको वैलिडेट करके उसने मॉनिटरिंग कंट्रोल को भेज दिया। अब ये सारी चीजें जब यहाँ इकट्ठी हुई, उधर से इसको प्रोजेक्ट प्लान भी मिला और अगर उसमें अपडेट करने की जरूरत है ये अपडेट भी कर देगा, डॉक्यूमेंट्स में अपडेट करने की जरूरत है ये अपडेट कर देगा। वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट ये बनाई। अब गौर करने की ये बात है कि वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट जाती किस किस को है? सबसे इंपॉर्टेंट मैनेज प्रोजेक्ट टीम को जाती है, क्योंकि टीम के साथ जो सलूक रवा रखना है वो इसने रखना है। मैनेज कम्युनिकेशन को भी जाती है ताकि कम्युनिकेशन करने वाला इस बात का ख्याल रखे कि पहले क्या परफॉर्मेंस जा रही है, पहले हमने इतना जोर देने के बावजूद भी हमारा कम्युनिकेशन मैकेनिज्म वीक रहा और लोग उसके साथ अवॉइड बाय नहीं करते रहे, तो मुझे ज्यादा अपने फ्रीक्वेंसीज को अपनी कम्युनिकेशन के बढ़ाना पड़ेगा। कंट्रोल रिस्क के लिए भी मुझे वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट की जरूरत है। और प्रोक्योरमेंट्स जो कि एक अलग दुकान खुली हुई है सब कॉन्ट्रैक्टर्स की, उनको भी इस वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट आगे ट्रांसफर करने की जरूरत है ताकि वो उसके मुताबिक काम दुरुस्त कर सके। तो आपने देखा कि मैंने तो प्राइमरीली आपको कहा था कि मैनेज प्रोजेक्ट टीम, लेकिन और भी जगह हैं जहां वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट जाती है। इसके अलावा वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल को भी जाती है, 5वीं जगह ये है। और चेंज रिक्वेस्ट है तो आपको पता है कि जो इधर से भी निकलेगी वो भी कहीं से भी निकले, चेंज रिक्वेस्ट ने तो इसके पास ही जाना है। फिर जनाब आ जाती है ये इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल। इसके पास चेंज रिक्वेस्टें अप्रूव या रिजेक्ट होती हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान था, वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स अभी आपको बताया मैंने पिछली स्लाइड में कि वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट आ रही है, चेंज रिक्वेस्ट भी आ रही है और वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी आ रही है, तो ये दोनों चीजें यहाँ पे से रिसीव हो गई। एंटरप्राइज नॉमिनल फैक्टर प्रोसेस एसेट्स के पास पहले से मौजूद थे। टूल्स में कोई बड़ी साइंस नहीं है, एक्सपर्ट जजमेंट है, मीटिंग है और चेंज कंट्रोल के टूल्स है।
और ये आपके प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान में दिए होंगे कि क्या चेंज कंट्रोल कर जाए। अगर चेंज मैनेजमेंट प्लान अलग से बनाए तो उसके अंदर दिए होंगे, तो वो उन टूल्स को इस्तेमाल करके आपने चेंज को या अप्रूव किया या रिजेक्ट किया। अगर अप्रूव कर दिया तो अप्रूव्ड चेंज जो है ये जाएगी पहले तो जैसे अभी मैंने आपको बताया क्वालिटी कंट्रोल में जाएगी, क्वालिटी कंट्रोल उसको वैलिडेट करेगा, वहां से आएगी और उसके बाद अप्रूव चेंज रिक्वेस्ट की एक कॉपी आपकी एग्जीक्यूशन को भी चली जाएगी। चेंज लॉग जो है वो मेंटेन होगा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स अपडेट होंगे इसकी रोशनी में। और इसका अगर आप ये चार्ट देखें तो ये सारे जो हैं दिस ऑल आर चेंज रिक्वेस्ट फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग। सो डोंट रिमेंबर के कहां से आ रहे हैं, हर जगह से जहां से आ रहा है इधर ही आ रहा है। जो जो चेंज रिक्वेस्ट भेजने का मजाज है वो इधर ही भेज रहे हैं ना, और कहीं नहीं भेज रहा। तो ये चेंज रिक्वेस्ट सारी वहां से आ रही हैं, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एसेट्स वगैरह आ रहे हैं, और आपके मॉनिटरिंग कंट्रोल प्रोजेक्ट वर्क से भी चेंज रिक्वेस्ट आ रही है और वर्क परफॉर्मेंस रिपोर्ट आ रही है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान आपको आ रहा है, और नीचे से आपका जो डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क है उसको आपने चेंज रिक्वेस्ट उधर से भी आपको रिसीव हो रही है। और आप भेज क्या रहे, अप्रूवल्स किस किस को भेज रहे हैं, अप्रूवल्स की एक कॉपी डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क को जा रही है अप्रूव चेंज रिक्वेस्ट की, क्वालिटी कंट्रोल को जा रही है, क्वालिटी कंट्रोल प्रोक्योरमेंट को जा रही है, और स्टेक होल्डर एंगेजमेंट को जा रही है। तो ये अप्रूव चेंजेस इन सबको बतानी है ना, प्रोक्योरमेंट जो ठेकेदार हैं सब उनको हमने अपनी जो चेंजेस अप्रूव हो गई हैं उनकी इंटीमेशन देनी है, स्टेक होल्डर्स को एंगेज रखना है उनको देनी है, क्वालिटी कंट्रोल से वैलिडेशन लेनी है इसकी, और मैनेज के पास डायरेक्ट एंड मैनेज प्रोजेक्ट वर्क के पास जाना है, और प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स को हमने यहाँ पे अपडेट कर देना। फिर जब आप आ जाते हैं क्लोजिंग के ऊपर, जो आपका आखिरी प्रोसेस है, उसमें आप देखें तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान एक्सेप्टेड डिलीवरेबल। एक्सेप्टेड डिलीवरेबल कहां से आया, ये आगे हम स्कोप में पढ़ेंगे कि स्कोप ने जिस चीज को पास कर दिया उसका नाम है एक्सेप्टेड डिलीवरेबल, वो यहां आ जाएंगे। और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस, एंटरप्राइज नॉन मैन्युफैक्चर का कोई रोल नहीं रह गया। ये चंद जगह ऐसी हैं जहां आपको ये चीजें इनपुट में नजर नहीं आती, यहां आपको पहली दफा नजर आ रहा है कि एंटरप्राइज नॉन मैन्युफैक्चर यहाँ पे कोई रोल प्ले नहीं कर रहा। अब तो क्लोज हो रहा है प्रोजेक्ट, अब कौन सा एंटरप्राइज नॉन मैन्युफैक्चर कुछ प्ले करेगा। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस के प्रोजेक्ट को क्लोज कैसे किया जाए उसकी हिदायत वगैरह क्या, टेक्निकली एक्सपर्ट जजमेंट आप इस्तेमाल करते हैं टूल्स एंड टेक्निक्स में। एनालिटिकल टेक्निक्स मुझे चाहिए ताकि मैं ये देख सकूं कि सारी चीजें सही सही क्लोज हुई हैं, सारे कागजात पूरे हैं, तो मुझे उस हवाले से एनालिटिकल टेक्निक्स चाहिए। प्रोजेक्ट प्लान के अगेंस्ट में चीजें चेक करूंगा, अपनी टीम के साथ मीटिंग करूंगा, और फाइनली अगर सब ओके है तो फाइनल प्रोडक्ट सर्विस जो है वो मैं दे दूंगा कस्टमर को, और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स को अपडेट कर दूंगा। सो ये ब्रॉडली था जी गेम सारा। और इसका अगर आप ये देखना चाहें क्लोजिंग का चार्ट, तो इसमें क्लोज प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट प्लान आ रहा है, अपडेट होकर वापस नहीं जा रहा, एक्सेप्टेड डिलीवरेबल्स आ रहे हैं वैलिडेट स्कोप से, ऑर्गेनाइजेशन से सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स आ रहे हैं, और जो कुछ लेसन लर्न जहां से कागजात जमा कर रहे हैं वापस उसको जमा हो रहे हैं, और जो फाइनल प्रोडक्ट है वो कस्टमर के पास जा रहा है। तो ये था जी, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर कोई क्वेश्चंस हो तो वो बताइए। सर ये चेंज कंट्रोल की जो आउटपुट है अप्रूव चेंज है वो उधर भी तो जाती है स्कोप में, वो जब डिलीवरेबल को वैलिडेट करने के लिए, तो वहां पे भी तो होनी चाहिए, वो नहीं इसमें। नहीं, स्कोप चेंज हुआ है तो उसका डिलीवरेबल से ताल्लुक नहीं है। डिलीवरेबल का काम बनता है, डिलीवरेबल जब निकल के आ जाता है ना एग्जीक्यूशन से बाहर, तो अब या तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा, वेरीफाई होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, और या उसमें फ्लॉ होगा तो वापस चला जाएगा। अगर वापस जाना है और कोई करेक्शन करनी है तो यहां चेंज रिक्वेस्ट बनेगी ना, इसकी चेंज रिक्वेस्ट के थ्रू ही सारा कुछ वापस जाता है। आई मीन कि आप क्वालिटी प्रोडक्ट ठीक नहीं बनी, क्वालिटी कंट्रोल, इसको आपने रिजेक्ट कर दिया, जब आपने इसको रिजेक्ट कर दिया तो चेंज रिक्वेस्ट बनी कि इसको ठीक करो, डिफेक्ट रिपेयर होगा, चेंज रिक्वेस्ट अप्रूव होगा, बकायदा खर्चा बढ़ेगा, कोई और हिसाब किताब होगा, वो अप्रूव होगा, अप्रूव होने के बाद वो एग्जीक्यूशन को बता दिया जाएगा इस तरीके के साथ। और क्वालिटी को हम वैलिडेट करने के लिए इसलिए भेज रहे हैं कि ऐसे तमाम केसेस जो डिलीवरेबल से कंसर्न है वो देख ले कि ये वाकई जो चीजें से रिजेक्ट की थी ये वापस चली गई हैं कि नहीं चली गई। ठीक है जी, तो स्कोप वैलिडेशन के लिए हमें दोबारा भेजने की जरूरत नहीं है जी। एनी अदर क्वेश्चंस? नो सर, वैसे बड़ा हेक्टिक था आज का सर। सर एक है सर, एक क्वेश्चन ये सर, इनिशिएशन में वो पहली बात ये कहता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर इज टू बी हायर्ड, फौरी तौर पे करें, ऑल्दो डॉक्यूमेंट जो प्रोजेक्ट चार्टर रिमेन।
क्या जी प्रोजेक्ट चार्टर में? भी उसमें इनपुट या उसमें बाय इन होना चाहिए एट द स्टार्ट। किसका? वो तो किसका बाय इन? प्रोजेक्ट चार्टर में प्रोजेक्ट मैनेजर का। देखिए, बाय इन होने का मतलब क्या होता है कि इन कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब लेकिन असल में ये है ऑप्शन। बुनियादी तौर पे जो चीज है वो है चार्टर। हुक्मनामा जो है, अब हुक्मनामा अपने सबॉर्डिनेट से पूछ के तो नहीं दिया जाता, लेकिन अगर आप उसे कॉन्फिडेंस में रख लें तो अच्छी बात है, वो भी प्रिपेयर्ड होगा। उस हवाले से वो बात कही गई है। वरना ऐसी कोई बात नहीं है कि जी अगर वो उसका बायन नहीं है तो बस मैं नहीं देता तुम्हें, या वो कहता मैं सर एक्सेप्ट नहीं करता। वो अभी इस पोजीशन में नहीं है कि वो एक्सेप्ट ना करने की बात करे। उसको काम लेना होगा, और लेने के बाद जब वो स्कोप स्टेटमेंट वगैरह तैयार करने लगेगा, तब उसे अगर उसकी इम्पॉसिबिलिटी का यकीन हो तो वो उसको वहां पे स्कोप स्टेटमेंट में प्रूव करता है कि ये काम हो नहीं सकता। और वो स्कोप स्टेटमेंट जब जमा करवाता है प्रोजेक्ट स्पॉन्सर को, तो वहां पे कहता है ये काम नहीं हो सकता और मैं नहीं करूंगा। लेकिन अभी तो उसको चार्टर दिया जा रहा है, वो अभी क्या है कि नहीं सर मैं नहीं कर रहा, ये तो कोई बात ना हुई ना। लेकिन वो क्योंकि काफी सारे डॉक्यूमेंट्स में ये लिखा होता है कि प्रोजेक्ट चार्टर टू बी रिटन बाय प्रोजेक्ट मैनेजर या समथिंग लाइक दैट। सर जी जहां जहां लिखा होता है ना, जहां जहां लिखा है, अगर किसी, मैं चैलेंज करता हूं, ऑथेंटिकेटेड ऑथर की किताब में भी लिखा है तो मैं आपको साबित करूंगा ये गलत है। मैंने खुद पढ़ा है, गलत लिखी हुई हैं चीजें। अंग्रेजों की किताबें, हम अंग्रेजों पे तो ईमान बड़ी जल्दी ले आते हैं ना, उनकी पूजा करनी शुरू कर देते हैं। अंग्रेजों में गलत लिखा हुआ है, किताबों में गलत लिखा हुआ है। आपका सोर्स जो है वो पीएमआई है, और आप यकीन करें कि पीएमआई के स्टैंडर्ड आने के बाद सारे अपनी किताबें रिवाइज करना शुरू हो गए। सबने अपना स्टैंडर्ड के मुताबिक अलाइन करना शुरू कर दिया। तो ये आप इस गलतफहमी में ना रहिए कि ये प्रोजेक्ट मैनेजर नहीं लिखता चार्टर। प्रोजेक्ट मैनेजर का काम नहीं है चार्टर लिखना, लेकिन वो उसमें लिखने में मदद प्रोवाइड कर सकता है। सही। ये पीएमबीओके में वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है, और इसके ऊपर हमारी बड़ी बहस हो चुकी है पीएमआई में बड़े लोगों के साथ, और बहुत लोग ये मिसकंसेप्शन कैरी करते हैं। जी जनाब। अच्छा जी, क्वालिटी तो जी क्या? सर मैं ये सर क्लेरिफाई करना चाहता था, जी जी। एक क्वालिटी कंट्रोल में अगर कोई डिलीवरेबल फेल हो जाता है तो आपने कहा कि उसको इंटीग्रेटेड चेंज कंट्रोल से गुजार के फिर दोबारा हम नहीं, अभी आप क्वालिटी कंट्रोल का इंतजार करें। क्वालिटी का सब्जेक्ट आएगा ना जब, तो उस वक्त हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो होता क्या है। जब वो चीज वहां से निकली, क्वालिटी कंट्रोल में गई, एक तो एक्सेप्ट हो गई, जो एक्सेप्ट नहीं हुई तो उसने तो वापस जाना है ना ठीक होने के लिए। तो वो क्वालिटी कंट्रोल भी चेंज रिक्वेस्ट करता है। जो चीज ठीक नहीं होगी उसकी चेंज रिक्वेस्ट निकालेगा, और उस चेंज रिक्वेस्ट से पता चलेगा इसका डिफेक्ट रिपेयर होना है, इसमें क्या चीज होनी है। उसका एनालिसिस भी साथ देगा कि जनाब इस चीज को गलत बन गई है, इसको दुरुस्त करने के लिए इतना स्कोप, टाइम और कॉस्ट में फर्क पड़ रहा है, जिसकी वजह से मैं चेंज रिक्वेस्ट मूव कर रहा हूँ, इस चीज को ठीक किया जाए। इजाजत मिलेगी तो वो ठीक होगी। अगर बॉस ये कहता है कि नहीं जी हमने कोई नहीं ठीक करनी और प्रोजेक्ट ही बंद करो, यहाँ घर चलते हैं, तो बस बंद कर दें, फिर हम कौन होते हैं कुछ करने वाले। लेकिन वो उसका चैनल वही है, चेंज रिक्वेस्ट के थ्रू। ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज, गुड नाइट। अल्लाह हाफिज़। संडे को सर आओ, संडे